Hello, 1 2 3. Hello, 1 2 3. अस्सलाम वालेकुम। जी जी हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम इरफान। हाँ जी, इरफान भाई, अवैस बात कर रहा हूँ। जी जी वैसे कैसे how are you? We're just waiting for everyone to come. Thank you very much for joining. जी जी, कोई मसला नहीं। और सब खैरियत? जी बिल्कुल first class, thank you. We are doing this webinar especially with the Time Institute, which is Okay. one of the pharmacy leading institute in Multan in Pakistan. Yep. Yep. Ji, can you hear me? Can you hear me clearly? Is it all good? Yep. Okay, thank I you. can hear you. I'm just taking my mic. This is our topic today, pharmacist pathway to Australia. Okay. How was your day, Wesbay? How are you? हाँ जी, बस it was fine. Very hard. Very hectic. So how was your day? It's good. Yeah, it was good. We have a few deadlines, few Okay. days. Busy as usual. Mashallah, say yes, busy with our team, busy new Well, venture which we started. just a minute. Come. You know, when we do webinars, we need to make sure we allow people who we know or we think they are wise people, because sometimes in my previous webinars, somebody like some scammers just join and actually make my webinar very difficult. Pakistan. We're just waiting for everyone to join because there are a lot of people joining at the moment, and just making sure I have the names correctly visible so I can let them join. I cannot let everyone to join because I need to know the names. Welcome everyone who joined so far and waiting for us to start.
And if you know anyone who's trying to join and they're joining with no name, please let me know, because I would like to the name visible so I can let everyone know. I can let everyone know, everyone enter. Um, so can you please put your mic on mute if you join? Thank you. If you kindly see anyone who's not really relevant, please let me know so we can maybe exit them. यार हैंड फ्री दिखा लो सारे मेरी क्लास वाले सुते हुए हैं आप लोग ये आ गया दिखा अभी चला गया Is Vivo Y21 is like a mobile model in Pakistan, because there are a number of people coming with VIVO V2061. I just want to confirm if anyone can help me, please. Does anyone know this? Is it a mobile number? VIVO? Should I let them in? Okay, we got quite a few people now. So we got 36 people joined so far. I'm just waiting for some more to join. How's everyone so far who already joined this group? Can I get anyone volunteer to talk? Everybody feel like this conversation, yes, raise your hand and maybe talk. Okay, so we will wait another 1 more minute and then we will start the proceeding. Oh my Is God. everyone happy with that? Yep, Miss, I think Miss Abid, you have a question. You have raised your hand. If you want to talk, you can talk. Oh my God. Oh my God.
Yes, Muhammad Ali, you have a question. I just unmute you. You have raised your hand. Would you like to say any comments? Look, we're going to talk about the pharmacist career today, especially when you're graduating from the university and what you can do to do some special like tasks that you can complete, and you can join workforce in Australia by doing certain things. Australia is a great country where pharmacists can come and work, especially if you are a young person and want to have a change in your life, to move to a well civilized country like Australia, where there's a great opportunity, great weather, and great scope for pharmacists. And we have been guiding so many pharmacists from last few webinars, and quite a few students have joined this pathway to come to Australia. So I'm hopeful it will be an interactive session, and pharmacists who just recently graduated from university, they have a greater opportunity because at the moment, Australia state nominations are open, especially for those who don't have experience. If they pass the Kaps, they can come to Australia. So this is something which really an important point for everyone. You, especially those who graduated recently, that can be a very life-changing thing for anyone who seriously take this webinar as a event for them to understand and follow the later pathway. All right. I'll just let few participants to come into the webinar. I'll just say welcome to everyone. I know there are quite a few names that I have received from Time Institute. I'd like to say thank you for everyone who organized this event, especially Ahtsham Pervaiz, who is in contact person with me from last 2 months from MULTAN, and he actually arranged this coordinating role with Time Institute. And I'd like to say thank you to the chairman person, Sarfraz Muzaffar Saab, and Executive Director of Wardah, Naseem, Director Academic Allah Bakhs, Mr. Allah Bakhs, or Dr. Allah Bakhs, sorry, and Head of Department, Dr. Sajid Nawaz, and lecturer, Dr. Memona Asma, and Khadija Hussain. Thank you very much for making sure that all the students get this message on time and they can join this session with us to understand why we're doing this program, why we're doing this webinar, and what it benefit you or your students can take out of it. And if they make notes, make sure you have your pen and your diaries, or you're making some notes while you're going through with this webinar. This webinar is not just a talk or a presentation, it's like a message that you can write down these notes. And if you write down these notes, that means that you can understand it better and you can teach someone else as well. So that's something which I really encourage when someone come in my webinar. I always want them to write notes, make notes on a piece of paper or in a diary, so you can teach someone else as well. So that's something which is important. As a pharmacy student, you have done this many years, I guess. So that's not a big task for anyone who's joining us today. So I guess everyone would have a paper pencil or paper pen or notebook, so you can write notes. And later on, we will have a question answer session where a number of questions you can put your question into the chat box. And I know that there will be a lot of questions coming in. I will answer those questions, but I have someone guest here with me, Mr. Pervaiz from Brisbane. He is a very good person, especially, but also a very good visa knowledge person. He's running his own business, own consultancy firm in Brisbane for many years, and he has done a lot of pharmacy visa. So I welcome Mr. Pervaiz Tahir. He's sitting with me. You can see him, he's smiling, and he had a very busy day. And this is the evening time in Australia. It's 8 p.m.
evening time, but still we have daylight because it's summertime here in Australia. All right, so I'll just so is everyone ready to Okay, I'll put everyone on mute by one button, and then I'll put I won't show you many slides. I will be just talking more, and I would like interaction from those people who are actually here for I'll just make sure that we don't have anyone who is not interested, so we can move them out, because in my last session, there were some people who just get into the system and they were not really interested into the webinar, so we have to move them out. So if you find anyone, please let me know so we can keep our concentration, because it's a very important session for 1.5 hours, 62 participants sitting with us, and we like everyone to progress with this webinar. All right. Okay, I'll just put this one first slide out here. Request again, if you can please put your mics on mute. I try to put everyone mute, but someone just enter with the group not muted. I'll just make sure we have everyone on mute so we can concentrate. Oh wow, there are 7 people coming in. Okay, I'll let them come in. Okay. I'll just go and share the screen. Okay, this is a simple introduction about me, who I am. I'm a pharmacist by profession and working in this country from I'm here in this country from last 20 years, but I'm a pharmacy owner from last 17 years. And working in Australia, I choose to work in regional Australia, and where most of the jobs are still available, and still there are a lot of opportunities for pharmacists from overseas to come and work in this country. So I have worked in South Australia. South Australia is the regionals, is a site which is still called regional Australia, and some of the areas are called outer regional areas. So these areas which are welcoming pharmacists from overseas, and many jobs opportunities are available. We have done a webinar or a pharmacy conference last month where we invited Pharmacy Guild President, which is one of the peak body, and Pharmaceutical Society President, which is another peak body in Australia. That was a webinar or conference arranged by Pakistan Embassy or Pakistan Consulate. So in that first presentation, the Pharmacy Guild President was saying loudly that we require overseas pharmacists to work in our regional sites, and there are 3,500 jobs that are available. So if the president of Pharmacy Guild is saying that 3,500 jobs available, so that's mean that there are a lot of jobs available, and you can progress your status by doing the Kaps exam or by upgrading your skill assessment and come to work in Australia. All right, so this is something, just a very quick introduction why we are here today. We are here to learn the pathways, how you can come. And I guess there are a lot of students sitting here who freshly graduated or who may be in the final year. Can I ask to raise your hand so I can see how many students are sitting here, or how many? First, I need to know how many students are still in the uni or final year. If you can please raise your hand and give me an idea, if you can do that, please. I'm asking with everyone, please. So I can see how many students we have here. You have an option in your webinar, in your Zoom, where you can raise your hand, like a yellow raise. Yes, I can see 3 hands so far. Is that all, or I'll go for my next question? And in the chat box, you can write down that if you're a student, which uni or which year you are in. If you can please write down as well. So I know that, are you in the final year, or are you in the third year, or are you in the first year? I just want to have an idea. I just want to feel who is sitting here, who's the audience today with me.
First year, Mubin Ghani. That's right. That's good. I can see Mubin's message. Someone said Honey. The name is Honey. Okay. Mobile name is Honey. First year. Zainab, second year, first year. Right. Okay. So I have gather information. There are a lot of first year and second year students sitting here. Okay. Okay. That's very nice. Yep, many of them have joined. Thank you very much for this response. Thank you very much. I guess that we have at least more than 15 or 20 students replied back to me. I can see their response. Oh, first year, second year, and few MPhil scholars are here. Okay, that's very good. And one more question I really want to know: who are here today? Who got their degree in their hand and their mark sheets, and they are registered pharmacists in Pakistan, or they have the pharmacy council license they have? If you could please drop your hands now. I just want to have a quick question, like who are recent graduates or who have the registration in Pakistan, because that's a very important question for them and for us to know to guide further. I can see some names there. 1, 2, 3. Mohammed Daniel Mehndi, Mohammed Hussain, Rizwan Javed, Rizwana Reis, Numan. So I can see some names there. I'll just move everyone back again. Give me a second. We have 73 participants so far at the moment. That's good numbers. Thank you very much for this response. Thank you very much. And I'll just go back to my slide, which I was trying to show. Okay, so I worked in most of my life. I worked in regional sites, regional Australia. The reason is that the acceptability of overseas pharmacists or acceptance of overseas pharmacists is more in this part of the world. Okay, you can. I would request everyone to drop your hands now, please. If you can go back on your menu and drop your hands, that will be good. Thank you. Thank you for your participation. Okay, so that's good introduction. If there are people just join, I'll just put everyone on mute again. I'll just press that button. Okay, let me share my screen. Okay, I'll quickly highlight this slide, which talks about, can you see this slide which says the scope and opportunity for pharmacists in regional Australia? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so the main reason for showing you this slide is where are the jobs in Australia. So we are actually doing this webinar to find out how we can come to Australia and where we're going to work in Australia. That's very important to know. So most of the jobs for overseas pharmacists are vacant, as I explained in my message earlier, that is available in regional Australia. Regional Australia means that not in Melbourne City or not in Sydney or not in Brisbane, not in Perth, but they are available outside of the region, outside of the main cities, like 200 kilometers in a regional city. So these places are called regional Australia, and regional Australias are not like small villages or small gao or small places. They are well served places, like they have every facility in their town or in their small city, like internet facility, hospital facility, or transport facility, or any other facilities. All right. Okay. So they are like, I was just talking about lifestyle and amenities. Amenities are like daily things which we need in our life. If you live in Lahore, for example, then you may need all the
facilities. So every facility which you think of about living in Australia that are available in regional Australia. All right. So that's something which you need to be very clear about it. Like, it's not like living in a jungle or living in a remote area where all the aboriginals are coming in and hurt you. No, it's not like that. So many people have been in just many different views about regional Australia. So I need to make sure I teach them, I advise them about what is regional Australia. And Australia is a cultural place which is quite significantly different from Australia. So that's something very important for us to understand when we want to come to Australia, because it's not like Dubai where we just go there and we have all the Pakistani people living and we mix with them. Is a different country where we meet, where we live with Australian people. They like to speak true. I mean, many people think that Australia is a racist country, but you know that when we go to anywhere in a new place, we need to learn those cultures, those languages, how to speak, how to mix up. If we do that, then everyone will start loving you. All right. So don't think that Australia is a racist country. But if you are good and you are interactive with the culture, you are mixing with them, you are making friends with them, then they are best people in the world. All right. Okay. And okay, the pharmacist, how they can work in this country. There are 3 streams. One is community pharmacy, which is most high demand at the moment. Work in a community pharmacy. Okay. Other streams which are open recently, which become attractive for some people who have some experience. If they have some experience like pharmacy technician, that also one of the place where pharmacists can come with the qualification, but they can work as a pharmacy technician if jobs are available. But jobs are available, but they're not significantly as available as like community pharmacy. And another pathway is, okay, I'll admit everyone. Okay, the other pathway is industrial pharmacist. That's also one newer option, which was not in demand in previous years, but now is in demand by the immigration department. And that also allow people to come if they have some experience. All right. The good news is that if a pharmacist who become recently, like who was recently graduate, if they come out from uni and they got the degree, they got the license in Pakistan, if they pass the Kaps exam, they can apply for visa with no experience. So that's something which is something which was never there before in past. So something new, which is huge attraction for undergraduate students who completed their degree. So that's something very important. So state nomination are available from Western Australia, and more information will be discussed by my friend Uves. He will highlight those things, those information in more depth. All right. Okay, I'll just let more people to come in. Okay. Okay, I'll just go back on this slide. So I'll talk about that most important option, which is available for fresh graduates, is to do Kaps where they don't have an experience. If they do this assessment, which is documentation, like documents that they provide for evaluation, from Kaps. Kaps is an exam which is like initial assessment for overseas pharmacists. So if that exam is now available in Pakistan, in Islamabad, that exam is available in March, in July, and in November. All right. So any pharmacist who is willing to go to Australia, if they want to write Kaps exam, they can do this exam in Islamabad. Okay, I'll just, and for submitting your documents, you need to do these steps, which is called step 1, documentation evaluation for your skill eligibility notification, where you submit your documents like your degree, copy of your degree, like mark sheet of your mark sheet and degree, and your pharmacy license, your passport, and I think CNIC. No attestation is required. You can just scan those documents and submit by making a portal on Kaps website. These are kind of qualification with your passport and photograph, and submit this fee to them. That they will take like 2 months time and give you a letter that your documentation has been assessed by us and you are ready to write an exam. So when you writing an exam, this is the exam fee.
that they will charge if you are attending the exam in, for example, someone is attempting to exam in July, they can pay this $2,230 fee, and they can attend the Kaps exam. If they pass the exam, then they can do the state nomination, which is another step, which my friend will discuss, and then they can apply for the visa, and that Mr. Pervaiz will discuss. I'll touch that area. Experts knowledge required in that. So my area is to guide everyone. Pathways are open, and you can develop your skills to this level where you can sit in the Kaps, or if some people have plan to come here as a pharmacy technician. So I would advise all the pharmacy students to do some work at the moment. Don't sit at home in the evening. Just go and work in the pharmacy, in community pharmacy. Try to get work as much as possible. And if that work can be labeled as pharmacy technician during your undergraduate degree, then you can use that experience to apply later on when you're finishing your degree for Australia, if that option is still open for putting your case through pharmacy technician. So these are the exam centers. This is the slide which highlighted by us, like saying that Islamabad is the exam center that one can take. So I'll just make it simple again. For Kaps, you need to do the exam to become registered pharmacist. This is something which you need to do. And I'll just go back. Okay, so this is actually the slide that I want to discuss from my end, and I will ask my friend Pervaiz to discuss a little bit about exactly the visas option when you pass the Kaps exam, or if you want to come to pharmacy technician or industrial pharmacist. And after that, we can have question and answer session. All right, or any senior professor want to say anything, they can also let us know if there's any special thing they want us to highlight. Thank you. Thank you, Wes, but you can start, please. But you are mute. Over to you, sir. Wes, but you're still on mute. You need to unmute yourself first. Okay. Yeah, thank you. Hello, can you hear me? Okay. Yeah. Hello, everyone. I'm Wes Tahir, registered immigration consultant based in Brisbane, Queensland, Australia. And thanks for inviting me, Irfan bhai, on this great occasion. So firstly, I would like to highlight about the skilled migration program of Australia. So as you know, there are different types of skilled visas, and there are different types of occupations which Australia welcomes and entertains skilled migrants. So today we will be focusing on pharmacists. So basically, there are different types of pharmacists who can migrate to Australia, like, for example, hospital pharmacist, retail pharmacist, pharmacy technician, and industrial pharmacists. So there are 2 to 5 types of pharmacists. So the difference, I can tell you what's the difference between them, because as you know that for any type of skill migration, you need to have your skill assessment. What is skill assessment? Skill assessment means that your overseas degree and your overseas qualification needs to be assessed equivalent to Australian qualification and employment standards if you want to migrate to Australia as a pharmacist. So I would like to start first that how you can migrate as a pharmacist. So there are different types, as I said: hospital pharmacist, retail pharmacist, industrial pharmacist, pharmacy technician. So for example, if you are a hospital pharmacist or a retail pharmacist, then you need to clear the Kaps exam. To have your skill assessment before immigrating to Australia, you need to clear that test. And then you can have your positive skill assessment to be eligible to migrate to Australia. So hospital pharmacist and retail pharmacist. However, there are 2 occupations in which you do not need to sit in the exam, which is pharmacy technician and industrial pharmacist.
So industrial pharmacist and pharmacy technician skill assessing authority is Bettison. And for other hospital and retail pharmacies, the skill assessment authority is Australian Pharmacy Council. So that is different actually. In that case, you have to clear exam. So what are the steps? First, you have to get your skill assessment. Then you have to clear your PTE or IELTS, and you have to at least get 65 points on the points table, just like Canada. So Australia is a points-based system, their immigration plan. So, and also you need to have certain number of years experience to be eligible for state nomination, because pharmacists can come either on state sponsorship or employer sponsorship. They cannot come on independent visa subclass 189 because pharmacist field is on the short-term list. It is not on the medium-term list. So, for example, if you have done bachelor degree in pharmacy, for example, and you have experience as a hospital pharmacist or rural pharmacist, you need to go through the exams and then get the skill assessment. However, if you are pharmacy technician or industrial pharmacist, Bettison assessing authority will assess you. Now for industrial pharmacist, because I will highlight on industrial pharmacist and pharmacy technician, the other two fields, you need to clear exam, that is separate. So I will tell you the easier way. For example, if you don't want to sit in the exam and you have experience as an industrial pharmacist. So for industrial pharmacist, you need to have at least 1 year experience after your qualifications. You cannot claim experience during or before your qualifications. So for example, in 2020, you completed your pharmacy degree. And after that, you need to have at least 1 year experience to get positive skill assessment from Bettison as an industrial pharmacist. But if you have 1 year experience, the Bettison assessing authority will deduct 1 year experience as a qualifying period. For example, you have 1 year experience and your skill assessing authority will deduct that experience as a qualifying period. So it means for points-based employment, to claim the points for the regional state sponsorship, you will have 0 years experience. But if you have 2 years experience or 3 years experience, for example, 2 years experience, the Bettison will deduct 1 year experience, then you will have 1 year experience left. Like out of 2 years experience, 1 year experience, they deduct every time, whenever you go for skill assessment. So for the point-based system, honestly speaking, if you have 4 years experience, then you get 5 points, because overseas experience 3 years at least, you get 5 points. So if you have 4 years experience, they deduct 1 year qualifying period. So after deducting 1 year out of 4 years, then you will have 3 years experience, which will give you 5 points. But it does not mean that you cannot immigrate to Australia. Like for example, South Australia needs you to have 65 points. And for example, if you have 2 years experience, you must have 2 years experience actually, because 1 year experience, they will deduct assessing authority. So you will have 12 months experience, which you will be eligible to put expression of interest for South Australia. So the process will be, once you get skill assessment positive, you will put expression of interest to any state. And then they will invite you after a certain period of time to apply for the visa. So that is the main procedure. Hello? Yeah. हेलो इरफान भाई, आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस सर, आवाज आ रही है जी, आपको आवाज आ रही है, ठीक है. So I have described you the industrial pharmacist. Now, if you are a pharmacy technician, the good news is that if you are working at least 20 hours per week during degree or before degree in a pharmacy as a pharmacy technician, then you can claim that experience for skill assessment. So for example, during study, you worked in the pharmacy and helped the pharmacist to label the medicines, mixing, like making the mixture for the medicine. So, and you have the pay slips, then you can go to the skill assessment to get your to degree and experience assessed. So pharmacy technician is the easiest way as compared with industrial, hospital, or retail pharmacist.
If you are a graduate and you worked during your study at least 20 hours per week, so that is a good news for you. Because for other fields, you need to have experience post-qualification after your degree. So that is the only difference. And the good news is that you just need reference letter and just the pay slips to get your skill assessment. So no bank statement required showing salary coming into your account. So the preference can be the pharmacy technician if you want to migrate to Australia. And if you have not got, for example, any experience during or after degree, then there can be another visa, training visa. If your employer wants to sponsor you to come to Australia on an internship or any training, so you can get that visa too. That is employer sponsor. So as I said, there are two types of visas: state nomination, in which the state nominates you. Other one is the employer sponsor, if any employer sponsors you. So basic thing, if you're a fresh graduate, no experience, you can come on a training visa, get a bit experience here, onshore here, Australia, and then get your skill assessment and migrate. So that is the easiest way for fresh graduates. And if you have experience, then it can be a skilled migration. Sorry, So, yep. I have a request from some participant that they're saying that if you can please narrate this in Urdu, that make a little bit easier for them. Urdu में बता देता हूँ. ठीक. Make it a little bit, then it will be easier. ठीक है. तो इस तरह के जो आपके डिफरेंट फार्मासिस्ट टाइप्स के होते हैं, उनकी दो स्किल असेसिंग अथॉरिटीज हैं. एक जो है ए फार्मेसी, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल, और एक है वेट एसेस. जो सबसे इजियर वे है, जो एग्जाम के बगैर आप आ सकते हैं, वो दो ऑक्यूपेशंस ही हैं. या तो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट है या फार्मेसी टेक्नीशियन है. बाकी हॉस्पिटल और रिटेल फार्मासिस्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा और वो एक डिफरेंट स्किल असेसिंग अथॉरिटी होगी. तो अगर तो आप एग्जाम समझते हैं दे सकते हैं और आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं या रिटेल फार्मासिस्ट हैं, तो उसमें तो एग्जाम एक लंबा थोड़ा चक्कर होता है, कैप्स एग्जाम आप क्लियर करना होता है. लेकिन अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन है या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट है, तो आपको एग्जाम क्लियर नहीं करना. हाँ, आपको सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपकी स्किल असेसमेंट के लिए. तो अगर आपने डिग्री के दौरान या डिग्री से पहले फार्मेसी टेक्नीशियन काम किया है फार्मेसी में, तो फार्मेसी टेक्नीशियन इज द बेस्ट वे टू इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया. तो या तो स्टेट नॉमिनेशन पे आप आ सकते हैं. 65 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, जिसमें आपका एज फैक्टर है. मैक्सिमम पॉइंट्स अगर 25 साल से 33 साल तक की आपकी उम्र है, तो 30 पॉइंट्स मिलेंगे आपको. उसके बाद फिर 25 पॉइंट्स हो जाते हैं. तो अगर आप 65 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, 6 ईच ले लिया है और एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर्स का है आपका, तो आप जो है स्टेट स्पॉन्सरशिप पे आ सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि अगर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, या तो फिर एक्सपीरियंस ले लें 2 साल का डिग्री करके, या फिर कोई एम्प्लॉयर अगर आपको स्पॉन्सर कर दे, तो देयर कैन बी ऑप्शन लाइक मे बी ट्रेनिंग वीजा होता है. इंटर्नशिप के लिए आप आ सकते हैं उस पर, जो कि मोस्टली डॉक्टर्स बहुत यूज करते हैं. वो यहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग करनी है या ऐसी चीज करनी है, तो फार्मासिस्ट भी वो यूज कर सकते हैं. और थोड़ा सा ड्यूटीज के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा फार्मेसी में जनरल ड्यूटीज भी की हुई हैं, तो आप अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया है एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन, अगर आप शो कर सकते हैं एक्सपीरियंस, तो वो भी आपका चल सकता है. तो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन, इसमें कोई एग्जाम नहीं है. और रिटेल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और 2 डिफरेंट असेसिंग अथॉरिटीज हैं. तो ये फिर आपकी असेसमेंट करनी पड़ती है हमें, इमिग्रेशन कंसल्टेंट को, कि एज फैक्टर क्या है, मैरिड हैं कि नहीं मैरिड. अनमैरिड हैं तो 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको. अगर मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं, तो उसके आप 10 पॉइंट्स ले सकते हैं. तो लेकिन सबसे बेनिफिट ये आजकल दे रहे हैं यंग लोगों को जो कि अनमैरिड हैं, क्योंकि स्ट्रेट अवे 10 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं पॉइंट्स टेबल पे, जो यंग लोग हैं. तो ये एक पूरा सिनेरियो है स्टेट स्पॉन्सरशिप का और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, कोई भी अगर आपका हो. I'm pretty sure there will be many questions. बहुत सारे questions होंगे. तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने हाथ रेस किए हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि हाथ जो रेस किए हुए हैं, जैसे कि पहले, तो ये क्वेश्चंस के लिए हैं या ये वो पुराने वाले हाथ हैं जो ऊपर जो पहले से हैं? तो काइंडली अगर पुराने वाले हाथ ऊपर हैं तो उनको नीचे कर लें, ताकि हम 1 by 1 किसी का क्वेश्चन ले लें और आंसर कर दें. और मैं चाहूंगा कि जो कोऑर्डिनेटर हैं अगर कुछ कहना चाहें हमें, तो दैट विल बी अमेजिंग. प्लीज, जो कोऑर्डिनेटर, जो चेयरपर्सन है हमारे साथ. Assalamu alaikum, sir. I hope I'm audible to you people. Yes, we can hear you. Okay. First of all, I would like to thank you, Sir Irfan and Sir Awais, that you have given us your precious time, and you have
collaborated with Times Institute Multan. You have given us a great opportunity to get and learn a lot from you related to immigration to Australia. Secondly, I would like to ask a question that many of the students ask, like, how can we get employer, or how can we find out how can we get an employer, or how can we find an employer that who will sponsor us in case if the state is not, if we don't find state as a sponsor to sponsor us. And my second question to you is this, that um, what around what kind of approximate expense can someone have in their mind for all of the process in regard of financial terms? Okay. ओके इरफान आप बोलेंगे? नहीं वैसे आप हाँ बताइए जी, कि जी। आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जी। और उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर स्टेट नॉमिनेशन नहीं मिलती है तो एम्प्लॉयर कहाँ से मिलेगा? तो पहले तो आप Oh, बताएंगे that स्टेट is नॉमिनेशन तो खुली हुई है इस वक्त, अगर खुली हुई है नॉमिनेशन तो एम्प्लॉयर से ज्यादा तो अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो स्टेट नॉमिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑनेस्टली स्पीकिंग. इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड द एम्प्लॉयर, क्योंकि यू हैव टू कन्विंस द एम्प्लॉयर के आपको ढूंढना पड़ता है एम्प्लॉयर. दो किस्म के एम्प्लॉयर्स होते हैं, या तो कि जान पहचान वाला हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखा है कि इंडियन और नेपाल की जो कम्युनिटी है वो बड़ा उनका आपस में होता है, एम्प्लॉयर्स काफी उनके साथ जुड़े होते हैं यहाँ पे, जो पहले से जानते हैं जो यहाँ पे होते हैं. या तो एक तरीका वो होता है कोई रेफरेंस हो, कोई जान पहचान वाला हो. पहली तो होता है कि अगर वो मिल जाए तो बेस्ट है. दूसरा ये कि या फिर आपको ईमेल्स करनी पड़ती हैं, कांटेक्ट करना पड़ता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज को. लकीली आपके जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या इस तरह की जो फील्ड हैं उनकी रीजनल में काफी शॉर्टेजेस हैं, जिसकी वजह से कई रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, आपको गूगल में मिल जाएंगी कि आपको कांटेक्ट वो करें, और इवन वो आपको स्पॉन्सरशिप का जो भी प्रोसीजर है वो भी सारा गाइड कर देते हैं, एवरीथिंग. तो आपको बड़ा कांटेक्ट करना पड़ता है एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए, काफी जान मारनी पड़ती है. अगर आप लकी हैं तो मिल भी जाता है, लेकिन 70% केस में 60% केस में एम्प्लॉयर ऑलरेडी जानता होता है बंदे को पहले से, थोड़ा बहुत नो हाउ होती है उसकी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है. दूसरी ऑप्शन ये है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लें अगर डिग्री के बाद, एटलीस्ट 2 इयर्स का, तो फिर भी आपकी जो साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा, इनमें सीवियर शॉर्टेजेस हैं अभी फार्मासिस्ट की. साउथ ऑस्ट्रेलिया इवन टेकिंग फार्मेसीज ऑन 1 ईयर एक्सपीरियंस. लेकिन मसला ये है कि अगर आप स्टेट स्पॉन्सरशिप के रूट से आते हैं तो उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 1 साल का कंसीडर होगा. जिस तरह कि मैंने कहा है कि वेटरनरी असेसिंग अथॉरिटी जो है वो 1 साल डिडक्ट कर लेती है एक्सपीरियंस, क्वालिफाइंग पीरियड वो आपका करते ही करते हैं. तो अगर 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम है तो फिर 1 साल का आपका काउंट हो जाएगा, तो उसमें आपका चांस बन सकता है. अदरवाइज एम्प्लॉयर भी जो आपको स्पॉन्सर करेगा वो भी एक्सपीरियंस मांगेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के वीजाज हैं सब क्लास 482 स्पेशली, वो 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगता है. अदरवाइज दूसरा एक वीजा है सब क्लास 400 जो कि स्किल शॉर्टेज वीजा शॉर्ट टर्म कहलाता है. उसमें बेशक आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन बट यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड टू फाइंड एम्प्लॉयर. आपको काफी कॉन्टैक्ट्स देखने पड़ेंगे, लिंक्डइन से आपको मिल जाएंगे कई आपको एम्प्लॉयर इस फील्ड के. अगर वो कन्विंस हो जाते हैं आपसे तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि शॉर्टेजेस हैं बहुत ज्यादा. जिस तरह के मैंने कहा साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा, ये अभी 4 में बहुत सारी स्किल शॉर्टेजेस इनकी आई हुई हैं फार्मासिस्ट की. तो ये आप देख लें कि अगर एम्प्लॉयर अगर आप रेफरेंस से या ईमेल्स करके आप अगर ढूंढ सकते हैं तो. अदरवाइज प्रेफरेंस ये भी स्टेट स्पॉन्सरशिप की हो सकती है अगर आपने डिग्री के दौरान थोड़ा बहुत फार्मेसी में काम किया है. थोड़ा बहुत आपको प्ले भी करना पड़ता है, जो आप कर भी सकते हैं कि अगर फार्मेसी में कोई जनरल काम भी किया है तो अगर आपको नो हाउ है फार्मेसी टेक्नीशियन की, तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आप मतलब बीइंग लाइसेंस होल्डर में आपको ये नहीं कह सकता कि फेक बनवाएं, वो मैं इजाजत भी नहीं देता मुझे ऑस्ट्रेलिया का लॉ, लेकिन थोड़ा बहुत आप प्ले कर सकते हैं इस चीज में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जस्ट यू नीड पे स्लिप्स फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन. अगर आपको कोई है फार्मेसी में कोई थोड़ा बहुत आइडिया, आपने कभी काम किया हो, तो यू कैन गेट ड्यूटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन टू माइग्रेट. वैसे एक चीज में कुछ कहना चाहूँगा, जैसे कि बच्चे अगर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके आ रहे हैं और आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. हेलो मैं हेलो, आपको मेरी हाँ जी. आवाज आ रही है? जी इरफान भाई अभी आ रही है. जी जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट है जहाँ पे उन्होंने स्टेट नॉमिनेशन वेलकम की हुई है,
उनके लिए भी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे अगर किसी जी को? हाँ, उन्होंने बिल्कुल किया वेलकम, लेकिन वो सारी फार्मेसी की फील्ड्स नहीं की जी वो। सिर्फ हाँ कैप्स के लिए किया हुआ है उन्होंने, कैप्स हाँ, पास कैप्स करने के लिए किया हुआ है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज वेरी सिलेक्टिव काफी सिलेक्टिव स्टेट है वो। ओके तो कैप्स के लिए किए, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रेफरेंस उन्हीं को देते हैं जो ऑन शोर हो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा इशू ये है कि वो ऑन शोर जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने वहाँ पैसा खर्च किया है और जिनके पास जॉब इन हैंड वहाँ ऑन शोर है, उनको प्रेफर किया जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के केस में या जीपी जिन्होंने एमसी क्लियर किया हुआ है और वो ऑफ शोर चले गए हैं, उनको तो वो प्रेफर कर लेते हैं। ओके लेकिन जो सबसे फ्रेंडलियर स्टेट है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे फ्रेंडलियर ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत अच्छी। मैं भी वहीं से हूँ, मेरा भी हाँ ताल्लुक हाँ, ये भाई भी उधर से ही है। प्राउड साउथ ऑस्ट्रेलियन फ्रॉम लास्ट 20 years. So that state has been very friendly for past at least 15 years. मायूस नहीं किया अभी तक, उसने इतना मायूस नहीं किया। और सबसे ब्रूटल जो है वो सिडनी है, और आप ब्रिस्बेन के लें और मेलबर्न के लें, दे आर वेरी ब्रूटल, मतलब इस लिहाज से। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया इज गुड। और आपके क्वींसलैंड ने भी इंटरेस्टिंगली इस बार खोल दिया, क्योंकि शॉर्टेज बहुत हैं ऑफशोर के लिए, उन्होंने फार्मेसी टेक्नीशियन खोल दिए। तो पहली दफा हुआ है लेबर गवर्नमेंट के आने के बाद, क्योंकि पिछली तो लिबरल थी, तो इन्होंने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है। सो क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, यस कैनबरा आल्सो इनवाइटिंग, और आखिर में फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये 4 स्टेट्स हैं जो कि इनवाइट कर लिए, लेकिन प्रेफरेंस साउथ ऑस्ट्रेलिया ही है। प्रेफरेंस साउथ ऑस्ट्रेलिया, ओके प्रेफरेंस साउथ ऑस्ट्रेलिया ही है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच. Sir, I also have one question. Yes, please. Sir, having done Vitasis, if I come Australia by state nomination, but unfortunately I could not get job over there. So for the timing till I get the job in industry, so can I work in a retail setup as my documents will be certified from the Vitasis? So will there be any confusion or will there any be legal way to work as a retail pharmacist? You cannot work as a retail pharmacist without registration. You can only work as a pharmacy technician or industrial pharmacist without license. So okay, yeah, it's illegal, because that's why you have to clear Kaps exam for retail pharmacist and hospital pharmacist. That's why they're very hard. They have hard time for that. Yes, sir. Sir, as I will come after, as I have 5 years of industrial experience, तो मैं इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस पे आऊंगी। तो अगर मेरे इंडस्ट्री में लेट सपोज मैंने सुना है कि वहाँ पे चांसेस कम है, तो क्या मैं एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन काम कर सकती हूँ वहाँ पे? फार्मेसी टेक्नीशियन का अगर आपको नॉलेज है, और फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू में अपना शो कर देती, क्योंकि फार्मेसी टेक्नीशियन बहुत जनरल फील्ड है। यहाँ पे जो फार्मेसी टेक्नीशियन काम करता है वो असिस्ट कर रहा होता है फार्मासिस्ट को लेबल करने में, इंस्ट्रक्शंस डोजेज की जो स्टिकर लगाते हैं, फिर मिक्सचर्स जो बनाते हैं। जी सर, असिस्टेंट टू फार्मासिस्ट। क्यों सर, भाई ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं बस कहना चाहूँगा कि इफ़ यू कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, लेट्स से इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर योर विटासिस से आपका सब कुछ हो गया, योर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस पे आ गया, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन बीइंग अ फार्मेसी डिग्री होल्डर, अगर आप यहाँ पे आके कुछ कोर्सेज यहाँ पे अपने नॉलेज को, यहाँ के लोकल नॉलेज को अपग्रेड कर लें, जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट जो आते हैं ओवरसीज के लिए, उनको हेल्प करने के लिए फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, वो अगर आप कर लें, कुछ यहाँ पे फर्स्ट एड कोर्स कर लें, वो चीज़ें अपनी सीवी पे डाल लें, जो कि 1 महीने से ज़्यादा की मतलब मेहनत नहीं होती है, तो वो मैं गाइड करता हूँ, और उसकी बेस पे आपको एज ए फार्मेसी स्टाफ या फार्मेसी टेक्नीशियन काम मिल जाता है। लेकिन आपने इतनी मेहनत की है, इस कंट्री में आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट जॉब ले लें, पैसे अर्न करें, और फिर उसके बाद कैप्स कर लें, और कैप्स करके जहाँ पे जॉब्स हैं $50,000 एनुअल की सैलरी पे जो जॉब है वो पकड़ें, और उसके बाद फार्मासिस्ट जब बन जाए तो $100,000 तक की जॉब है जो वो पकड़ें, तो थिंग्स कैन इम्प्रूव। बट ये जो हम बात कर रहे हैं, पाथवे बता रहे हैं, वैसे भाई जो बता रहे हैं कि आप इंडस्ट्री के पाथवे पे आ सकती हैं रिगार्डलेस से आपको जॉब नहीं मिलती है, तो दे आर वेज यू कैन फिट इन, बिकॉज एट द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त काफी खपत है लोगों की। काफी पहली चीज तो है कि आपने किसी तरह लीगल तरीके से यहाँ आना है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं स्किल माइग्रेशन के ऊपर। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट ने एक बार आप यहाँ पे आ जाएं, तो उसके बाद हाथ पांव मार के कुछ एग्जाम अगर क्लियर कर भी लेते हैं रिटेल फार्मासिस्ट का या आपका दूसरा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, तो उस लाइन में जा भी सकते हैं। जी थैंक यू सर। यस। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम, प्लीज अपना रेज हैंड कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए, वी विल लव टू आंसर। अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं वशी बात कर रहा हूँ सर। मैं एज ए टेक्नीशियन काम किया है फार्मेसी में भी और हॉस्पिटल में भी, वेरी नो गुड, हाव है थोड़ा बहुत। गुड। वेरी गुड। तो मतलब फार्मेसी अपनी अभी इतना खास नहीं, लेकिन किया है, जानता हूँ 2-3 साल से। तो मैं इसमें कौन से वीज़ा में अप्लाई कर सकता हूँ और क्या उसमें प्रोसीजर है? जैसे सर कह रहे हैं पे स्लिप तो नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपने बारे में आपने लीगल एक्सपीरियंस लिया हुआ है? जी सर। फिर तो पे स्लिप्स का इशू ही नहीं है, क्योंकि पे स्लिप जो है आपका एम्प्लॉयर आपको इशू कर सकता है कभी भी, सिस्टम जनरेटेड होती है वो। अगर आपने लीगली काम किया हुआ है तो वो तो सिस्टम से जनरेट हो जाती है पे स्लिप्स। सर ये है तुर्की हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में, तो वहाँ पे काम किया है। हाँ हाँ बिल्कुल, छः- उसकी फार्मेसी में किया है ना आपने काम? उनको असिस्ट किया फार्मासिस्ट को। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं उनकी वो सेटअप था, फार्मेसी का सेटअप था वहाँ पे। हाँ जी। जी सर। हाँ, अगर तो आपने लीगल एक्सपीरियंस लिया है तो एक्सपीरियंस लेटर तो चले, वो ड्यूटीज तो आपने की होंगी, लेकिन जो पे स्लिप्स हैं वो तो जनरेट कर देता है एम्प्लॉयर, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो उसमें फिर स्किल वर्कर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, उसमें फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर मैंने आपको बताया, कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करे। दूसरा ये कि एज अ स्किल्ड वर्कर स्टेट स्पॉन्सरशिप सब क्लास 491 वीजा होता है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग डायरेक्ट पीआर वाला वीजा एंटरटेन नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, सवाए कुछ ऑक्यूपेशंस के। तो 491 टेम्परेरी लीडिंग टू पीआर होता है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं 3 साल बाद वो पीआर में कन्वर्ट होता है, लेकिन 3 साल आपको कोई भी जॉब करनी होती है रीजनल में, 53,900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम कमाना होता है, और वो पीआर में कन्वर्ट होता है फिर। तो वो स्किल वीजा ही होता है, लेकिन 3 साल बाद पीआर में कन्वर्ट होता है अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। और जॉब आप कोई भी कर सकते हैं 3 साल, बेशक आप और जॉब करें, व्हाइट कॉलर करें, डज नॉट मैटर। आप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी वाइफ है, पार्टनर है, वो कर ले या आप कर लें। और 53,900 पर एनम कमाना होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। 3 साल। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि sorry, let me finish. I have a very quick point with this reference. Last question जो था फार्मेसी टेक्नीशियन का, वो ये कि बहुत सारे कम्युनिटी फार्मेसीज रन हो रही होती हैं पाकिस्तान में, जहाँ लोग अपनी प्राइवेट कंपनी, अपनी प्राइवेट फार्मेसी या मेडिकल स्टोर जैसे कहते हैं, उसको आउट रन कर रहे होते हैं। तो आई हैव गाइडेड नंबर ऑफ फार्मासिस्ट who own pharmacies or who have worked in some friends pharmacies. So those who have done some experience, तो उनसे भी आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने अगर काम किया है वहाँ पे तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लेके आप वैस जो है उनको चेक करा सकते हैं और अपना केस बिल्डअप कर सकते हैं, और विटासिस असेसमेंट सारा कुछ जो है वैस आपके लिए करके दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन Bakhs आपको is लकीली जो है सिर्फ पे स्लिप्स एज अ पेमेंट एविडेंस मांगता है, विच इज गुड थिंग। वो लंबा चौड़ा चक्कर नहीं मांगता कि जी बैंक स्टेटमेंट या टैक्स स्टेटमेंट, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल में कैश इन हैंड भी लोग लेते हैं। तो वैसे जो केस है जैसे कैश इन हैंड है, तो क्या अगर उसकी कोई समरी बना के उससे एम्प्लॉयर से साइन करा लें, कोई एक्सेल शीट के ऊपर बना के कि इन डेट से पैसे ट्रांसफर करा कर सकते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयर ये भी कर सकता है कि पे स्लिप जनरेट करके उसके ऊपर लिख दे कैश इन हैंड, मतलब इसको दिया गया है। तो पे स्लिप जनरेट इज नॉट अ बिग इशू। ओके, पे स्लिप जनरेट कर देता है एम्प्लॉयर। ओके, ठीक है। थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा काम वगैरह किया हो, क्योंकि हमारा लाइसेंस भी कहता है कि ऐसे क्लाइंट को जो फेक पे आ रहा हो या इस तरह हो, लेकिन थोड़ा बहुत प्ले आपको करना पड़ता है ड्यूटीज के साथ, ये तो चलता है, थोड़ा बहुत आपको ड्यूटीज या उसके साथ। Okay, next question, please. Sir, I have another question. Like Kaps की preparation के लिए, what would you suggest our students? Any book like CPR or any other book or any other website through which they can prepare Kaps test? Okay, who's asking this question? Is this Khadija, Hussain? Yes, sir. I am asking on the behalf of students. They have texted me to ask this question. This is very, very important question, I guess, for everyone to listen very carefully. Look, Kaps is an exam which, as I said, is available in Pakistan, right? And for preparing the Kaps exam, you need to make sure you the paperwork hai, wo, just let me put some people on mute. Some people on mute. Give me 1 second. I'll just put everyone on mute and then you will unmute after that. Okay. What I was saying that कि जो कैप्स का जो एग्ज़ाम है उसके कुछ सैम्पल के पेपर्स हैं जो कि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और उसकी जो पेपर्स हैं वो हम प्रोवाइड भी करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर
जहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, जो पास क्वेश्चंस हैं, वो अगर आपको किसी तरीके से समझ में आ जाएं, अगर आपको मिले, तो एनीवन कैन प्रिपेयर द कैप्स प्रिपरेशन विद इन 2 or 3 months, प्रोवाइडेड कि अगर वो 2 से 3 घंटे अगर पढ़ते हैं रोजाना, या 4 घंटे मैक्सिमम शाम को अगर बैठ के पढ़ते हैं, 2 से 3 महीने में तैयारी हो जाती है। इस कैप्स का मतलब ये नहीं कि आपने सारी फार्मेसी की बुक्स पढ़नी है। कैप्स का मतलब है कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, उनके दिए हुए सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, और जो जैसे कि आपने बुक का नाम लिया CPR, उसके भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, उसके सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं। लिपिन कॉर्ड अगर है तो सारी बुक नहीं आपने याद करनी है, उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं यहाँ पे, लेकिन क्या जरूरत है, जब आप हमारे पास आए तो हम ही आपको अपने एक प्रोसेस से गुजारेंगे जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं। एहतशाम जो हैं वो जानते हैं, वो मेरे साथ ग्रुप में 2 महीने से हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, अपना पेपर सबमिट करते हैं कैप्स को, और फिर फर्दर नेक्स्ट जो मेरा ग्रुप है जिसमें एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमने एक खास ग्रुप बनाया हुआ है, वो उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो वेरी 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 सीरियस, एंड दे जस्ट गोइंग फॉर द मार्च एग्जाम, और दे गोइंग फॉर जुलाई एग्जाम। देखिए, मुझसे ग्रुप लिंक का आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हमारे पास ग्रुप का लिंक कोई नहीं हम देते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं स्टूडेंट, हम उनको पहले गाइड करते हैं, उनको रेडी करते हैं, उनको मेक श्योर करते हैं कि क्या करना क्या है। जब उनको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, देन वी इनवाइट इनटू द ग्रुप। क्योंकि 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ इस वक्त वर्ल्ड से, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों से भी, पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है। तो उसमें हम हर एक को लिंक नहीं दे सकते, क्योंकि हम लिंक दे देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा। हमने बहुत ख़ास रखा हुआ है, इसी वजह से रखा हुआ है ताकि हम उसमें फ्री पढ़ा सकें। हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं। दैट्स समथिंग व्हिच इज सरप्राइजिंग कि आपने पूछा कि कौन से वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स तो बहुत है, बट दे आर चार्जिंग मनी, बट वी आर नॉट हेयर फॉर अर्निंग मनी, वी आर हेयर टू गाइड पीपल। और इसके पीछे एक मिशन है। हमारा मिशन वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया आए, इस मुल्क में अपना रोज़गार कमाएं, यहाँ पे आके अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद यहाँ की इंडस्ट्री के लीडर बने, एंटरप्रेन्योर बने, और बाकी लोगों की भी हेल्प करें। हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को हेल्प करें होगा अगर अगर आप यहाँ के सेटल होते हैं, तो जो ज़र मुबादला जो है वो वापस जाएगा मुल्क में। हो सकता है आप भी एक दिन आज से 5 साल के बाद इसी तरह कोई वेबिनार कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो दैट्स लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस। तो दिस इज द मेन एम फॉर दिस होल एक्सरसाइज व्हाट वी डूइंग। तो एग्जाम को जिसने करना है उसको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर दे आर इन टच विद मी, I can guide them throughout the process. No problem for that. I hope this helps. If anyone got any other question, please ask. This is your time. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. Please introduce yourself as well. फार्म डी के बाद कितना CGPA आना चाहिए? Sir Daniel Mehdi, second year student of pharmacy. Zabardast. Sir, क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में हम हमारी फार्मेसी काउंसिल है, हम खुद को रजिस्टर करवाते हैं फैमिली के बाद, इसी तरह फार्मेसी काउंसिल ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो वहाँ पर हमें खुद को रजिस्टर करवाने के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है, या सिर्फ कैप्स का एग्जाम ही काफी होगा? देखिए, जब आपकी डिग्री आपने फिनिश कर ली और यहाँ पे जो काउंसिल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो फार्मेसी बोर्ड, या उसको आपरा रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसको आपरा एक समझे एक बोर्ड है जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को रजिस्टर करता है इस कंट्री में। तो उससे रजिस्टर होने का ये प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है कैप्स जो है, ठीक है। तो कैप्स जो है ये फर्स्ट स्टेप है जो कि आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये टेस्ट पहले पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, कुछ 10 साल या कुछ 12 साल से ये टेस्ट बंद कर दिया था। पहले होता था 2008 में, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात में कुछ ऐसी चीज़ हुई कि उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन इसको दोबारा खुलवाने में हमने काफ़ी कोशिश की, और ये अब एग्ज़ाम सेंटर जो है ओपन है। 2020 से, मार्च 2020 से एग्ज़ाम हो रहे हैं यहाँ पे, साल में 3 दफ़ा। तो आपके आंसर का क्वेश्चन जो है, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में आके रजिस्टर होना है तो यू नीड टू कंप्लीट दिस कैप्स प्रोसेस फर्स्ट, एंड देन स्टार्ट वर्किंग एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट, एंड देन गेट अ फुल रजिस्ट्रेशन। तो आप फिर ऑस्ट्रेलिया की बॉडी से रजिस्टर हो सकते हैं। इज दैट द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, और am I not correct? यस सर, यही क्वेश्चन था। जी जी, तो ये और जी जी,
हमें सर ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कौन सा किस वीजे की जरूरत पड़ेगी? विजिटिंग वीजे के पर आए या फिर कोई और? नहीं, विजिट वीजे पे क्यों आए? हमने अभी जो बात की है, अभी देखें वैस भाई ने जो इतने अच्छे से समझाया है कि 3 प्रोसेसेस हैं जिसमें फार्मासिस्ट को इस वक्त इनवाइट किया जा रहा है, स्टेट इनवाइट कर रही है। पहले तो हम बात करते थे ना कि कोई स्पॉन्सर हो, एम्प्लॉयर हो, अभी स्टेट खुद स्पॉन्सर कर रही है उन फार्मासिस्टों को जो अपनी स्किल असेसमेंट करवा लें। अभी जैसे उवैस भाई, मैं उनको माइक देता हूँ ताकि वो उसको और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। उवैस भाई, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड मे बी जस्ट से दोज थिंग्स अगेन? आवाज आ रही है आपको? यस। हाँ जी। भाई इस तरह है कि जो स्टेट्स हैं वो आजकल नॉमिनेट कर रही हैं, क्योंकि 2 किस्म के तरीके से आ सकते हैं फार्मेसिस्ट, या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर होता है या स्टेट स्पॉन्सरशिप होती है। तो एम्प्लॉयर तो आपको ढूंढना पड़ता है, जाहिर बात है, रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। स्टेट स्पॉन्सरशिप में आप पहले स्किल असेसमेंट कराते हैं, ठीक है, या तो फिर वेटेसिस करती है या आप कैप्स का एग्जाम देके करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि इंडस्ट्रियल और फार्मेसी टेक्नीशियन को एग्जाम की जरूरत नहीं होती। अगर उस पास से आते हैं या आप एग्जाम क्लियर करके आते हैं, तो जब आपका असेसमेंट पॉजिटिव आ जाती है तो उसके बाद आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, ठीक है। स्टेट में साउथ ऑस्ट्रेलिया डाल दी, पर डाल दी, वो फिर आपको इनवाइट करती है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर। गारंटी नहीं होती कि आपको इनवाइट करेगी, डिपेंडिंग ऑन द कोटा, लेकिन मोस्टली चांस होता है कि हेल्थ प्रोफेशनल या फार्मासिस्ट को वो कर लेते हैं। तो जब इनविटेशन आती है तो उसके बाद फिर आपको वीजा डालना होता है, जो कि सब क्लास 491 रीजनल वीजा है, जिस पे आप वीजे पे आप यहाँ पे आके और फिर 3 साल बाद आप परमानेंट वीजा में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टेट स्पॉन्सरशिप स्किल माइग्रेशन वीजा है, इसी पे आप आ सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पे आ सकते हैं। तो 3 स्टेप्स होते हैं: स्किल असेसमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर वीजा इन्विटेशन जब आ जाती है तो उसमें फिर आप वीजा अप्लाई करते हैं। सो इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस स्किल माइग्रेशन। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इंजन का ठीक होना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप बेसिक है आपका स्किल असेसमेंट, इसके बगैर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, जो आपका जर्नी है माइग्रेशन का। तो ये आपको डिसाइड करना है कि एग्जाम वाले पाथवे पे जाना है या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट वाले पाथवे पे, या आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। मोहम्मद समील, फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी। यस सॉरी, प्लीज गो अहेड। सर ये पूछना था कि कितना मिनिमम CGPA होना चाहिए अगर ऑस्ट्रेलिया में जाना हो तो? Okay, that's very smart question, Sami Khan. That's very smart question. I really like that. Look, you need to pass your degree. Okay, if you are a position holder, that's amazing. Yes, But if sir. you are the backbencher, that's also Yeah. amazing. There's no difference in Australia for anyone who's coming from what GPA you're coming. There's no grading criteria. If you have a past degree, you can apply. So simple. All right. Okay. Okay. But I would say that if you're coming to Australia, just start learning English. If you are a very good communicator, that's the most important skill जो कि pharmacist को चाहिए. अगर if you start working on that, you will be very good in Australia when you come here by that time. Yes, English is important as well as skills. Yes, skill definitely, obviously, because skill जो है आपको allow करती है उधर काम करने के लिए, जो कि आपकी डिग्री है, ठीक है, स्किल आपकी वो है। और बाकी जो डिग्री के अलावा स्किल आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्पीकर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का वो हूँ, साथ उनके होता हूँ। तो उनका एक फ्री एक कोर्स हो रहा है 28 फरवरी को, 2 घंटे का ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, जो कि आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो चार्जेस, ठीक है। सिर्फ उसका एक लिंक है, वो मैं अगर यहाँ शेयर कर दूं तो आप सबको मैं चाहूँगा कि आप उस ग्रुप में आएँ और उसमें ऑनलाइन आके सेशन अटेंड करें। वहाँ के जो टीचर्स हैं वो सब मेरे जानने वाले दोस्त हैं, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग थिंग। समटाइम वो चार्ज करके पढ़ाते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो एक फ्री सेमिनार कर रहे हैं 2 घंटे का। तो आप आगे आपको अंदाज़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस लेवल की इंग्लिश बोली जाती है और क्या एक्सपेक्टेड है। तो आप वहाँ आके कैमरे पे आएँ, वो कैमरे के बगैर अलाउ नहीं करते हैं, आपको कैमरे पे बैठना पड़ेगा ताकि उनको नजर आए कि कौन सुन रहा है और कौन बात कर रहा है, और वो आपको फिर बात करने का भी मौका देंगे। जैसे भी आप बात करना चाहें वो आपको बात करने का मौका देंगे। तो इफ़ यू आर हैप्पी, आई कैन शेयर दैट लिंक to your like you're in charge, and they can circulate to you, and Yes, please. you can join that Yes. 2-hour session,
Yes, sir. Please It share will be the link. amazing experience I for want to everyone. go. Yes, please. Okay, who's the next question? Who's having the next question, please? Yes, sir. Please share. I want to join. Yes, I will share in a minute. Okay, I'll just share that. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Please introduce yourself. इजहारुल्लाह को बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। Yeah, sure, Izhar. How are you? अरे पूछना यह था कि ये गवर्नमेंट डिग्री की चाहत होती है या प्राइवेट डिग्री की? जैसे वो स्टेट वीजा भेजती है बच्चों को सिलेक्ट करने के, फार्मासिस्ट सिलेक्ट करने के लिए, वो बुलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। स्टेट जैसे बुलाती है, स्टूडेंट फार्मासिस्ट हो गया, उनको बुलाती है अपने मुल्क में। ये गवर्नमेंट डिग्री की स्टूडेंट को बुलाते हैं या प्राइवेट के? ये कोई उनमें डिफरेंस? आपकी जो डिग्री है वो अप्रूव्ड है आपके कंट्री के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब वो कहीं से भी डिग्री हो, आई डोंट नो, आपकी जो फार्मेसी काउंसिल है वो उसको अगर अप्रूव कर रही है, लेट्स सपोज वो आपको अप्रूव करके लाइसेंस दे रही है पाकिस्तान का, जिसको हम कैटेगरी कहते हैं शायद, तो कोई मसला नहीं है। दिस इज ओनली रिक्वायरमेंट। डजंट मीन कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो या कोई नया प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुला उससे हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वालों को इससे फिक्र नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वालों को ये फिक्र है कि आपकी डिग्री आपके मुल्क में अपने काउंसिल से अप्रूव्ड है, तभी वो लाइसेंस देंगे ना आपको। तो अगर आपको पता है कि आपको लाइसेंस मिल रहा है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। I have another. Yes, please go ahead. I think I can see some raised hands there. Sir, what is your work in Australia? Okay, who's asking this question? Can I see the name, please? Samiullah? Sir, Sami. Ji, sir, Samiullah. Samiullah या Sami Khan? I can see two Samis here. Sami Khan. Sami Khan. Okay, Sami Khan, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, मैंने क्रिकेट की शर्ट पहनी है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। आपने अगर मेरा उसमें इंट्रोडक्शन देखा हो जो कि टाइम इंस्टीट्यूट ने आपको शेयर किया था, वहां पे लिखा हुआ है कि ये फार्मासिस्ट है और ये फार्मेसी की डिग्री है। मेरी डिग्री पाकिस्तान की है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। इसके अलावा मैंने एमबीए किया हुआ है। इसके अलावा मैं मेंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं फार्मेसी गिल्ड का मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं फार्मेसी गिल्ड का बोर्ड मेंबर हूँ। इसके अलावा मेरी कई सारी सर्टिफिकेशंस हैं और मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ एज ए फार्मासिस्ट। तो मैं प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हूँ। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में काम करने का, 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मेरी अपनी कंपनी है जिसकी 7 फार्मेसीज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। So I hope you know my background now. Thanks. सर, आपको कितना एक अरसा हो गया है ऑस्ट्रेलिया गए हुए? जी सही, मैंने अभी बताया 20 इयर्स मैंने बताया। 2003 में आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज। Okay, sir. That is my age. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम अली अशरफ। सर, डिग्रीज दो टाइप की होती हैं, एक डी फार्म होती है, एक बी फार्मेसी होती है, तो इनके दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, ये डिग्री जो है पाकिस्तान की डिग्री है, ठीक है। और दोनों जो डिग्रीज हैं, आपको भी पता है कि बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो 4 इयर्स की है और जो फार्म डी है वो मेरे ख्याल से 5 इयर्स की होती है। मैंने फार्म डी मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है। मैंने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी किया और मैंने अपनी डिग्री को अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फार्म डी और बैचलर्स ऑफ फार्मेसी को कोई डिफरेंस नहीं करार देते। यहाँ पे दोनों डिग्रियों को बराबरी इसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, मुझे बताइए। क्या आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस, और वो ये पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या इसकी डिमांड है, ये क्वेश्चन है आपका? जी जी, यही कि इसकी अगर बी फार्मेसी हो तो उसकी क्या डिमांड है और फार्म डी की क्या डिमांड है? बिल्कुल, आप बी फार्मेसी की अगर किसी की डिग्री है तो उसकी बेस पे भी आप कैप्स को लिख सकते हैं, आपकी असेसमेंट हो जाएगी।
तो सर ये कैप्स का टेस्ट कैसे कोई अनाउंस होता है कि अब दे सकती है हम? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अप्लाई करना होता है कैप्स की वेबसाइट पे जाके, अपनी डॉक्यूमेंटेशन जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन असेसमेंट के लिए आपने दी, अपने पेपर्स दे दिए, जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में दिखाई थी स्लाइड, तो वो करते हैं। उसके बाद फिर आपको वो पेपर असेस करके बोलते हैं यस हमने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, अब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिए। और इस्लामाबाद में, जैसे मैंने कहा कि 3 दफ़ा एग्ज़ाम होता है ये, और अगर एग्जाम पास हो जाता है तो उसके बाद उवैस साहब का काम शुरू होता है। वो आपको अपनी जो असेसमेंट स्टेट डोमिनेशन वगैरह है वो आपसे उनसे करवा सकते हैं, और फिर वीजा। जी सर, थैंक्स सर। विल गो टू द नेक्स्ट। जी जी, वालेकुम सलाम। प्लीज नाम बताइए अपना और क्वेश्चन पूछिए। सर दिस इज एहतिशाम, और अभी अभी जो क्वेश्चन हुआ है मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी पहले फार्म बी था जो बाद में कन्वर्ट हो गया फार्म डी के अंदर। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन वो पूछे कि बी फार्मेसी फार्म डी में क्या डिफरेंस है, तो बी फार्मेसी एक शॉर्ट कोर्स है जो 2 साल का पाकिस्तान में करवाते हैं, जिसको फार्मेसी टेक्नीशियन भी कहा जाता है। वो 2 साल का सिर्फ एक कोर्स है, वो कोई डिग्री नहीं है और पाकिस्तान के अंदर। और जो फार्म डी है ये प्रोफेशनल डिग्री है पाकिस्तान के अंदर। तो वो अपना काइंडली जो स्टूडेंट है अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें, जो बी फार्मेसी है वो फार्मेसी टेक्नीशियन कंसिडर होता है, वो डिग्री नहीं है। तो वो जब आप जाएंगे वैसे फार्मेसी टेक्नीशियन जाएंगे। तो जो फार्म डी है वो डिग्री है 5 ईयर, जो पाकिस्तान में पहले फार्म बी थी बाद में कन्वर्ट होगी फार्म डी के अंदर। थैंक यू। और बी फार्मेसी वाले एज इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नहीं कर सकते असेसमेंट, क्योंकि वो इक्वलेंट टू 4 इयर्स डिग्री नहीं है ऑस्ट्रेलिया के। सही सर। जस्ट वांट टू क्लेरिफाई, आपने जो बात की है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो है वो तो 4 इयर्स की होती थी पाकिस्तान के अंदर। इज इट द अरे सेम? वो फार्म, यस सर, वो फार्म बी था। अब ये बी फार्मेसी के नाम पे यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा करवा रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट ओके, डिफरेंस वो मैट्रिक थिंग्स के आर बाद भी चेंज। हो जाता है, एसएससी के बाद भी हो जाता है। ओके ओके, तो थिंग्स आर चेंज बिकॉज मेरी जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की 4 इयर्स है और उसको बैचलर्स ऑफ फार्मेसी का नाम है उस पर लिखा हुआ। और नहीं और नहीं, अब आजकल पाकिस्तान डी में भी फार्मेसी चल रही है आजकल। जी जी, तब पाकिस्तान में भी फार्म बी था, जिसे कन्वर्ट कर दिया गया था फार्म डी के अंदर, और पंजाब के अंदर भी इसी तरह से था। ओके ओके, अंडरस्टैंड। ओके, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक फार्म डी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ की जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं वो 4 इयर्स की डिग्री करते हैं और उसको वो लोग बैचलर्स ऑफ फार्मेसी ही देते हैं। जो फार्म डी है पाकिस्तान की वो इक्विवेलेंट टू बैचलर ऑस्ट्रेलिया कंसीडर करते हैं असेसिंग अथॉरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, दैट्स वेरी अस्सलाम वालेकुम। 5 साल की स्टडी हो तो 4 साल के बराबर है। हाँ, डी फार्मेसी वाली डिग्री पाकिस्तान की यहाँ के 4 साल के इक्विवेलेंट मानी जाती है बैचलर। So basically what happens that जो लोग फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं 2 इयर्स डिप्लोमा, उनको कैटेगरी बी का लाइसेंस जो है वो इशू होता है, और फार्मासिस्ट को पाकिस्तान में कैटेगरी ए लाइसेंस मतलब मिलता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। कहा जाता है कि फार्म बी एंड बी फार्मेसी एंड फार्म डी। और पाकिस्तान में 2009 में बी फार्म बी जो है यानी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कन्वर्ट कर दी गई थी फार्म डी में, और उसके बाद अपने स्टूडेंट्स, वो लोग जिन्होंने फार्म बी की थी, वो 1 ईयर कंडेंस कोर्स करके अपनी डिग्रीज को अपडेट करवा चुके हैं कुछ लोग, और रेस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इन द वे जैसे चल रहा है। थैंक यू। क्योंकि अभी शायद लास्ट वीक जब मैं कुछ प्रोफेसर्स जो लाहौर में मैं बात कर रहा था, तो उनको मैंने अपना ये फ्लायर शो किया, तो उसमें मेरी डिग्री लिखी हुई उन्होंने देखी, बी फार्मेसी। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई ये क्या फार्म डी के अलावा बैचलर्स ऑफ फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? तो मैंने कहा जी मैं बहुत ही पुराना ग्रेजुएट हूँ, तो अभी तक कोई चेंज तो नहीं हुआ यहाँ पे कोई शर्त भी नहीं है कि आपने अपनी डिग्री को अपग्रेड करना है। तो अभी भी फार्मेसी जो काउंसिल है ऑस्ट्रेलिया की, वो वेलकम करती है अगर कोई पुरानी अपनी बैचलर ऑफ फार्मेसी जो 4 ईयर की डिग्री जिसने की हो उसकी बेस पे अप्लाई कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, दे कैन आल्सो अप्लाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, am I audible? जी वालेकुम सलाम। Sir, my question is very simple. I am actually a pharmacist working in MULTAN. और आपने जैसे बताया कि हमारे पास एक फार्मेसी टेक्नीशियन के थ्रू हम आ सकते हैं, उसके लिए मुझे स्किल असेसमेंट माइग्रेशन करवानी है
तो एक तो वेटेसिस के थ्रू मुझे करना है, एंड द सेकंड थिंग व्हिच आई एम आस्किंग इज कि इसमें मुझे किसी कंसल्टेंट की भी हेल्प की जरूरत रहेगी या नहीं है, मतलब कुछ थोड़ा सा मुझे आप क्लियर कर दें। और एक्सपेंस आपसे फाइनेंशियली के हवाले से पहले भी एक क्वेश्चन हुआ था, आई गेस अगर आप थोड़ा सा क्लियर बैठे करके हैं बता कंसल्टेंट दें। भाई, बैठे हैं सबसे एक्सपर्ट, वो बता देंगे आपको फौरन इसका आंसर। देखिए यार, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बड़े क्विक होते हैं जो खुद प्रेफर कर लेते हैं अप्लाई करना। कुछ होते हैं वो कहते हैं जी इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर करना है। अब ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। लेकिन थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कुछ असेसिंग अथॉरिटी की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यस लाइक यस यस फॉर एग्जांपल इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया जो है, इंजीनियर्स की वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, उनको सीडीआर लिखनी होती है। वेटेसिस जो है वो कुछ कंट्रीज के लिए स्ट्रिक्ट है। वो किस तरह स्ट्रिक्ट है कि वो कहता है कि ट्रांसक्रिप्ट डिग्री HEC अटेस्टेड हो। फिर वेटेसिस का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी है कि वो रैंडम कॉल्स भी करते हैं कुछ नेशनैलिटीज जो जहाँ की हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया। और रैंडमली कॉल कब आती है कब नहीं आती, ये थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो माइग्रेशन एजेंट्स को पता होती हैं। और यहाँ तक भी पता होता है कि कॉल कब आने का चांस है, कि पोर्टल में स्टेटस कब चेंज हो रहा है कब नहीं हो रहा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मशवरा यही होता है कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही हायर किया जाए। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जी मैं क्लाइंट्स को ट्रैक करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ लाइसेंस है ऑस्ट्रेलिया में, और वी आर नॉट प्राइवेट कंसल्टेंट्स, हमें यहाँ लाइसेंस है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये पाकिस्तान या बाहर कंट्रीज में बहुत लूट मार करते हैं कंसल्टेंट्स। इनको ज़रा सीधा करने के लिए इन्होंने हमारा लाइसेंस जो है वो निगाह रखते हैं हमारे लाइसेंस पे, और ऑडिट होता है हमारा। और इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जो हमारा है तस्वीरों के साथ हमारा सारा सबका प्रोफाइल होता है। तो प्रेफरेंस यही है आजकल लोगों की, जो पढ़े लिखे हो गए हैं लोग, उनको पता लग गया कि जी लाइसेंस हायर किया जाए। जो लाइसेंस कंसल्टेंट है वो स्ट्रीमलाइन कर देता है प्रोसेस काफ़ी हद तक। सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जाने, कैसे जाना, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। मतलब गारंटी हम नहीं दे सकते पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम की, लेकिन वो स्ट्रीमलाइन कर देते हैं प्रोसेस जो लाइसेंस्ड माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं। जो लाइसेंस्ड, मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, नॉन लाइसेंस की बात नहीं कर रहा। नॉन लाइसेंस यही होते हैं जो प्राइवेट, आप पाकिस्तान या किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर कंसल्टेंट से कराते हैं तो वो बेहतर होता है। लेकिन जो लोग बहुत रिसर्च में माहिर हैं, बहुत तेज हैं, वो खुद भी कर लेते हैं। ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो काफी रिसर्च पहले भी उन्होंने की होती है। लेकिन ये सिर्फ स्किल असेसमेंट की गेम नहीं होती, ये पूरा प्रोसेस है। आगे EOI डालना होता है, किस स्टेट को हिट करना है, किस स्टेट में क्या रूल्स चल रहे हैं, अप्रोप्रिएट वीजा कौन सा अप्लाई करना है, और इन्विटेशन के बाद अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन होती है वीजा के लिए। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है। तो बेहतर होता है कंसल्टेंट हायर किया जाए। लेकिन अगर आप रिसर्च में खुद बड़े क्विक हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो पूरी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देगा बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि हमारा लाइसेंस हमें बाउंड कर देता है कि वी हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट। तो हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी फिर जो फुल सारा कुछ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। ये हमारी मतलब कंपल्सरी है हमारे ऊपर ना, जो लाइसेंस्ड वाले हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह चलना है, खुद करना है या मेक सेंस सर। अगर आप मुझे किसी का नेम ले सकें, अगर यहाँ मुल्तान में या कहीं लाहौर में। देखिए, पाकिस्तान में जो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो तो ना होने के बराबर है। आई थिंक इक्का दुक्का है जिन्होंने सिडनी मेलबर्न ऑफिस खोले हुए हैं। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, जो लाइसेंस माइग्रेशन कंसल्टेंट है वो दुनिया में कहीं भी ऑपरेट कर सकता है। फर्ज करें मैं अगर पाकिस्तान नहीं ऑफिस खोला हुआ, डज नॉट मैटर, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का लाइसेंस नंबर मेरा है वो मुझे इजाजत देता है कि मैं दुनिया के किसी कोने से भी ऑपरेट कर सकता हूँ। तो मतलब इसमें वो चांस नहीं होता कि फ्रॉड है, ये है, वो है, क्योंकि हम गवर्नमेंट से लिंक होता है हमारा लाइसेंस, उस अथॉरिटी से, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये एक बड़ी गलत मिथ है कि जी जो लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट है उनका कोई ऑफिस बाहर है नहीं है। ये जरूरी नहीं है। अब ज्यादातर कंसल्टेंट यहाँ सिडनी मेलबर्न जो बैठे हुए हैं वो इसी तरह टेलीफोन पे और ईमेल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे लाइसेंस के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ज्यादातर क्लाइंट्स हमारे इसी तरह जूम पे या इस पे कॉन्टैक्ट करके सारा एग्रीमेंट साइन करके चलते हैं, क्योंकि उनको ये ट्रस्ट होता है कि हम लाइसेंस्ड हैं। तो इसमें कोई ये चांस नहीं होगा कि जो जिस तरह ब्रूटली जो रूट मार करते हैं प्राइवेट एजेंट कर देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ लोगों ने काफी खराब किया इस इंडस्ट्री को ना। तो इट डज नॉट नीड टू बी कि जो ऑफिस पाकिस्तान में ही हो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट का। थैंक यू वेल भाई, थैंक यू। तो सर जो फार्मासिस्ट होता है वो एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन अप्लाई कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में? जैसे कि आपने बताया उसका टेस्ट कोई नहीं होता,
ये इसका अगर टेस्ट एज होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए, क्योंकि 1 साल वो डिडक्ट करती है असेसिंग अथॉरिटी क्वालिफाइंग पीरियड, और 1 साल की पीरियड में साउथ ऑस्ट्रेलिया फिर भी वेलकम कर लेती है। एटलीस्ट 2 years आपको होना चाहिए, और डिग्री के दौरान भी कर सकते हैं आप। सर मेरा मतलब ये है कि डिग्री अगर फार्मडी की है, फार्मेसी की है, तो वो भी बंदा एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन हाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, ये शायद आपको अजीब लगे कि वेटिसिस में जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो कैटेगरी सी में आता है। इसके लिए आपके पास फार्मेसी की डिग्री ना भी हो तो काम चल जाता है। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, HEC रिकग्नाइज, फर्ज करें आपने BBA की है या MBA की है, और आपका 3 साल का अगर फार्मेसी टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देता है आपकी फार्मेसी डिग्री को। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए यू डोंट नीड अ फार्मेसी डिग्री, यू नीड जस्ट HEC रिकग्नाइज्ड डिग्री, एटलीस्ट HEC रिकग्नाइज्ड। तो इसमें खास तौर पे कि पाकिस्तान में एक्चुअली इस तरफ रुझान इतना नहीं आया इस चीज में। जो इंडियन क्लाइंट्स हैं हमारे, दे आर वेरी वेरी शार्प। आपके कई होते हैं जो अकाउंटेंट भी होते हैं, वो भी फार्मेसी में एक्सपीरियंस लेके यहाँ इमिग्रेट कर जाते हैं। तो ये फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए ये कैटेगरी सी की ऑक्यूपेशन है। इसमें किसी ने अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स भी किया हुआ है, HEC की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, याद रखें हायर एजुकेशन कमीशन की रिकग्नाइज होनी चाहिए, उस केस में आपका ये सब्स्टिट्यूट हो जाती है फार्मेसी की डिग्री। लेकिन यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस। ठीक है। और दिस एक्सपीरियंस कैन बी ड्यूरिंग द डिग्री, बिफोर डिग्री, आफ्टर योर बैचलर डिग्री, जो भी आपने की है। तो ये कैटेगरी सी की ऑक्यूपेशन है वेटिसिस की। वेटिसिस ने कैटेगरीज बनाई हुई ऑक्यूपेशन की। कैटेगरी ए, फर्स्ट करें इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, यू मस्ट हैव बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 years। सिर्फ फार्मेसी टेक्नीशियन के केस में उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है आपके कि कोई भी डिग्री आप रख सकते हैं HEC रिकग्नाइज्ड। तो सर फिर इस केस में भी हमें डिग्री असेसमेंट, जो डिग्री की है उसकी असेसमेंट वगैरह करवानी तो नहीं होती? नहीं, वो करानी होती है, डिग्री असेसमेंट लाजमी होती है। वो क्या करते हैं कि फर्ज करें एटलीस्ट आपका इक्वलेंट टू डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए। अगर आपने BA किया हुआ है 2 साल का, तो वो क्या करते हैं, फर्ज करें पंजाब यूनिवर्सिटी से या जो आपके दूसरे हैं 2 साल का बैचलर ऑफ आर्ट्स है, वो इक्वलेंट टू डिप्लोमा कर देती है वेटिसिस। उस केस में भी आपकी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आ जाती है अगर आपका फार्मेसी टेक्नीशियन 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम। लेकिन अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री है प्रॉपर, तो फिर 1 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का काफी है। सही है। तो ये फर्क है। फार्मेसी टेक्नीशियन को बहुत इन्होंने वो छूट दी हुई है, क्योंकि बड़ी जनरल सी फील्ड है। तो अगर आपका कोई जानने वाला है जिसने HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर 2 साल का BA भी किया हुआ है और फार्मेसी टेक्नीशियन काम किया है, ही इज एलिजिबल। That's very good point. Assalamu alaikum. Sir, this is Uzair, Surya John Blade. I have one question. Sir, regarding assessment of documents, my category is bound in a pharmacy. Can I still scan it and upload it? Or I have to get it released first, then I will upload it? क्या क्वेश्चन है? सर मेरा लाइसेंस जो है कैटेगरी वो फार्मेसी में इधर बाउंड है, तो क्या मैं उसको स्टिल स्कैन करके अपलोड कर सकता हूँ असेसमेंट के लिए, या मुझे उसको रिलीज करवाना होगा फर्स्ट? Where's my, I'll answer this question. What's your name, sir? आप नाम बताएंगे जिन्होंने सवाल किया, देख नहीं पाए। उज़ैर। ओके, देखिए पाकिस्तान का जो लाइसेंस है, एक तो आपने बताया कि आपका कोई फार्मेसी के साथ बॉन्ड है, कुछ इस तरह की बात किया आपने, वो तो फार्मेसी की ऑपरेटिंग लाइसेंस होगा मेरे ख्याल से। इज दैट राइट? यस सर। ओके, वो कैटेगरी के साथ अटैच होता है। ओके, तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैं भी पाकिस्तान में रजिस्टर हूँ, मैं सिंध फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर हूँ, तो आपका पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है आपका अपने नाम से, जिसमें शॉप का कोई अमल दखल ना हो? यस सर, मैं रजिस्टर्ड तो। ठीक है, तो वो जो कॉपी है, जो जिस पे सर्टिफिकेट है, जिसका इसमें शॉप का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ वो चाहिए हमको आपको अप्लाई करने के लिए, और कुछ नहीं। That's nothing to do with your license which is operating that pharmacy. So make sure we are not talking about that license. We're only talking about your personal registration as a pharmacist. But for Bettison assessing authority, you don't need even registration. You just need HEC recognized degree. आपके जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन है, जस्ट HEC recognized at least डिग्री हो आपके पास, you don't need to register in पाकिस्तान। हाँ, for hospital retail वो एक अलग कैप्स का जो बात आ जाता है। So Bettison is the most flexible. Okay, Bettison उन्होंने बता दिया कि there is no need for your license, just the just you need a HEC recognized degree, that's it.
तो और सिंपल हो गया। बहुत बेटा से ज्यादातर इस तरफ divert हो रहे हैं। सर जी वालेकुम सलाम जी, बताइए जी, नाम बताइए। सर मेरा नाम हिदायतुल्लाह है, फार्मासिस्ट हूँ। वेलकम। सर मैंने ये पूछना था कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो रजिस्ट्रेशन है इसमें सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और इस पे चार्जेस जो है वो कितने तकरीबन आते हैं और इसके लिए कोई एज लिमिट वगैरह है सर? आपने फार्मासिस्ट बनना है उसकी बात कर रहे हैं या फार्मेसी टेक्नीशियन? ये दो दो जरा क्लियर नहीं नहीं, मैं फार्मासिस्ट हूँ, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में सर। तो वैसे भाई कुछ बताएंगे आप, थोड़ा सा टाइम फ्रेम कैसा चल रहा है? किससे क्या क्वेश्चन इनका? इनका सवाल है कैप्स करके अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उसका पूरा प्रोसेस कितने टाइम फ्रेम में लगता है? कैप्स की असेसमेंट, कैप्स का एग्जाम तो तकरीबन 6 महीने में कर सकते हैं अगर आज ये स्टार्ट करें, तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा? उसके बाद जो एग्जाम अगर क्लियर कर लिया है और स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आ गई है, जी सर शुरू से सर बिल्कुल स्टार्ट से क्या प्रोसेस इनिशिएट करने के बाद टेस्ट देने में और फिर जो है वहाँ पे टेस्ट देने में तो देखिए इरफान भाई, ये जो कैप्स का है ये तो एग्जाम को तो आप बेहतर जानते होंगे कि दो एग्जाम होते हैं ना इनके दो एग्जाम होते हैं। जी हिदायत भाई, जो आपने स्टार्ट करना है ना प्रोसेस, सबसे पहले तो आपने कैप्स की वेबसाइट पे जाके उनका एक पोर्टल होता है, उस पे जाके अपना पोर्टल बनाना है, अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन भरनी है, ठीक है। उसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको अपना फार्मेसी की डिग्री, फार्मेसी की मार्कशीट और आपका जो पाकिस्तान का जो आपका लाइसेंस है जिसको हम फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट भी कहते हैं वो, और पासपोर्ट और आपका CNIC अगर इंग्लिश में बना हुआ है तो ये 2 ID डॉक्यूमेंट्स और ये बाकी पासपोर्ट फोटो, ये करके आप सबमिट कर दें। $1310 फीस दे दें उनको। 2 महीने के अंदर वो आपको इसका पॉजिटिव में आंसर दे देंगे, ठीक है। 2 महीने लगते हैं, वेट करना होता है। तो इस वेटिंग टाइम में मैं सबको एडवाइस ये करता हूँ कि वो PTE का टेस्ट कर लें। PTE का टेस्ट जो है वो आपके शहर, करीबी शहर में होता है, जैसे लाहौर में होता है, इस्लामाबाद में होता है, इंग्लिश का टेस्ट होता है। उसमें आपको एटलीस्ट 75 नंबर अगर आप ले लें चारों कंपोनेंट में, देन यू आर रेडी। और उसके बाद आपका जब असेसमेंट आ जाए कैप से, तो आप एग्जाम की तैयारी उस दौरान में शुरू कर लें हमारे साथ, ठीक है। और एग्जाम जो है जुलाई वाला अगर आप टारगेट करते हैं या नवंबर वाला इस साल का, तो वो आप उसमें बैठ जाएं, एग्जाम पास कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप अगर जुलाई का कर लेते हैं जल्दी जल्दी और जुलाई का इम्तिहान पास कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उवैस साहब का जो काम शुरू होता है कि वो आपको स्टेट नॉमिनेशन करवा के देंगे और फिर वो वीजा लगवा के देंगे। तो वो टाइम फ्रेम बताएंगे उसका। हाँ वो टाइम फ्रेम। अच्छा सर, मतलब सर एग्जाम के बाद, मतलब एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके बाद वीजा लिखने में सर कितना टाइम लगेगा? उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कितना खर्चा तकरीबन आता है? स्किल असेसमेंट जब आप करा देंगे तो EOI डालेंगे। EOI आप किस्मत भी होती है आपकी, स्टेट का कोटा कितना रह गया है, उसमें बड़ा पेशेंस चाहिए। 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। उसमें बड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि इन्विटेशन राउंड हर महीने होते हैं। अब कभी कभी वो इन्वाइट करते हैं, कभी कभी नहीं करते, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया में फिर भी चांस है कि 2-3 महीने में इन्विटेशन आ जाती है। जब इन्वाइट आ गया तो उसके बाद फिर आपको वीजा अप्लाई करना होता है और वीजा में तकरीबन आप कह लें 10 से 12 महीने लग जाते हैं आने में। तो स्किल असेसमेंट के बाद आप कह लें कि 1.5 साल तकरीबन लग सकता है, 1.5 से 2 साल। तो एस भाई, ये जो कुछ मेरे जान पहचान के लोग हैं जो अभी मैंने देखा है साउथ ऑस्ट्रेलिया आए हैं, उनसे मैंने जब ये पूछा तो एक ने मुझे बताया कि उनको 40 डेज में वीजा इशू हो गया था। जी वो मैं बताता हूँ आपको कि होम अफेयर्स का जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है वो तकरीबन 12 मंथ लिखा हुआ है। इंटरनली हमें पता है आजकल जल्दी आ रहे हैं, लेकिन हमारा लाइसेंस हमें बाउंड करता है कि जो होम अफेयर्स का टाइम लाइन है ताकि क्लाइंट्स बार बार कॉल ना करें। लेकिन तो हम वैसे अंदर की बात बता देता हूँ, अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं, अंदर की बात बता देता हूँ कि आजकल तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने में। लेकिन होम अफेयर्स हमें बाउंड करता है कि जो प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है वेबसाइट पे हम क्लाइंट्स को वो बताएं, क्योंकि बार बार क्लाइंट्स बहुत कॉल करते हैं इमिग्रेशन को, बार बार उनको तंग करते हैं। तो इस वजह से हमारा लाइसेंस बाउंड करता है। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू द बुक्स। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस। आपने पूछा एज का, तो उबैद भाई एज का भी बता दीजिए कि क्या मिनिमम एज चाहिए? देखें एज जो है मिनिमम 18 तो होनी चाहिए, 18 ईयर्स, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 45 ईयर्स है। जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं पॉइंट्स टेबल पे वो मिलते हैं 25 साल से लेके 33 तक, 25 ईयर्स से लेके 33 ईयर्स की एज तक मैक्सिमम 30 पॉइंट्स हैं। 18 से 24 साल तक 25 पॉइंट हैं और आगे फिर 33 से 39 ईयर्स तक 25 पॉइंट हो जाते हैं और 40 के बाद ऑनवर्ड 45 तक जस्ट 15 पॉइंट मिलते हैं। तो मतलब जिसकी एज अगर 40 हो गई है तो चांस है भी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना यंग एज में आपके। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ।
जी जी सर मैं समीउल्लाह बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी एक्चुअली सर मैंने अभी लेट ज्वाइन किया था मीटिंग को, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने क्लियर करनी है। अभी आपने एप्लीकेशन असेसमेंट की फ़ीस बताई है 1310 इनिशियल फ़ीस है जो, तो काइंडली एक तो ये क्लियर कर दें कि इसके अलावा कितने चार्जेस होते हैं, और दूसरा ये बताइएगा जो फार्मासिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो उनको वेजेस क्या मिलते हैं जो फुल फार्मासिस्ट जाते हैं। जी आई कैन टेल यू मच बेटर इजीली। देखिए, जब कैप्स करके जब यहाँ पे आते हैं तो आपको इंटर्न फार्मासिस्ट का जॉब मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के रीजनल साइट्स पे इस वक्त बहुत तहाशा अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आए ऑस्ट्रेलिया तो मेक श्योर कि ये कम विद द माइंड कि आपको रीजनल एरिया में काम करना है अगले 3 से ये तो पहला साल जो है जब आप इंटर्न फार्मासिस्ट का जब आप जॉब करते हैं, हम इंटर्नशिप भी कहते हैं, तकरीबन $55,000 पर साल का जो पैकेज होता है उस पर वो आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तकरीबन $4,000 मंथ के, ठीक है। तो ये तो पहले साल का इंटर्नशिप जॉब होता है, क्योंकि उसमें आप ट्रेन हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सुपरवाइज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फुल फ्लेज फार्मासिस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद जब पहला साल बनता है जब आपका, तो उस वक्त आपकी सैलरी जो है वो एकदम जंप करती है, क्योंकि इंटर्न फार्मासिस्ट की जो रेट्स होते हैं वो तकरीबन $25 से $26 पर आवर के हिसाब से होते हैं, लेकिन जब आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो आपकी रेट जो है वो एकदम 38-40 या उससे ऊपर चला जाता है, तो जो कि एनुअल पैकेज जो बनता है तकरीबन 80,000 से $1,00,000 तक की तनख्वाह बनती है साल की। तो ये एक जनरल गाइड है, ठीक है, और इससे ज़्यादा ही सैलरी तकरीबन जो स्मार्ट लोग होते हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है कंपनी में, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा रिजल्ट देते हैं अपने बॉसेस को, अपनी कंपनी को, तो उनकी फिर ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले एक वेबिनार में था, वहाँ पे मैंने सवाल किया था, क्वेश्चन किया था मैंने वेबिनार के शुरू में कि भाई आप लोगों को पता है जॉब्स कहाँ पे हैं ऑस्ट्रेलिया में। सब ने हाथ खड़ा करके बताया कि हाँ सिडनी में जॉब्स हैं। तो मैंने कहा भाई सिडनी में जॉब्स नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए जॉब्स किधर है, क्योंकि इस सारी बातों का एंड प्रोडक्ट क्या है, जॉब, पैसे अर्न करना, ठीक है। हम कोई घूमने नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, हम कोई पिकनिक करने नहीं आ रहे हैं, हम अपने लाइफ को चेंज करने के लिए आ रहे हैं। और लाइफ को चेंज करने का मतलब है कि आप अपनी अगली जनरेशन को एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री में लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे उनके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का प्रिविलेज भी मतलब आ जाएगा, जिसे वैसे जो है आपको बता देंगे कितने दिनों में आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, सिटीजन हासिल कर सकते हैं। ये भी आपको अभी से पता होना चाहिए सारी चीजें, ताकि आप प्लानिंग जो करें वो इतनी ज्यादा अच्छी प्लानिंग करें कि आपको उसका जो एंड रिजल्ट जो फ्रूट है वो पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो क्या मिलने वाला है। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने वेजेस की बात की है। तो आई होप कि एवरीवन हैज अंडरस्टैंड, everyone has written down these wages rates, which is significant high difference as compared to any other part of the world. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली ये बताइएगा जो आप Sorry, Sorry. Sami, are you still have a question? Sami, आपने अभी कुछ बोला? जी 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 सर, आपने जैसे कहा है कि पोस्ट डिग्री अगर हम वहाँ पे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में एज फार्मासिस्ट, तो हमें 1 साल के लिए एज इंटर्न काम करना पड़ता है। तो जिस बंदे का यहाँ पाकिस्तान में पोस्ट डिग्री 2 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उसके लिए भी वहाँ पे एज इंटर्न काम करना लाजमी होता है सर। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की जो काम है ना वो यहाँ के काम से बहुत डिफरेंस है। तो यू नीड टू गो थ्रू दिस supervised training and you need to understand the Australian way of work, Australian way of pharmacy and Australian culture as well. So you need to be ready to work to serve Australian community. That's why this mandatory training which is like 1875 hours जो कि आपको करनी होती है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। वो उसमें आपको लॉस पढ़ा रहे होते हैं, आपको कम्युनिकेशन बता रहे होते हैं, आपको सिनेरियो समझा रहे होते हैं, तो वो आपको रेडी कर रहे होते हैं ताकि आप सर्व कर सकें ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को। और आखिर में एक वाइवा या पैनल के सामने आपको बैठ के अपनी डेमोन्स्ट्रेशन करनी होती है। 1-2 घंटे तक वो आपको चेक करते हैं कि क्या आइदर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, either can we let you to work in Australia as an independent pharmacist। अगर वो satisfied नहीं होते हैं तो आपको फेल कर देते हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है, how we treat the other person, how we talk with the other person, so that's very important ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा होती है। सर क्या मैं 1-2 चीजें और क्लियर कर सकता हूँ? जी पूछिए। जी सर कैप्स के अलावा कोई लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के लिए? हमने बात की है पीटीई टेस्ट की, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 75 नंबर चाहिए। अगर आपको वीजा ऑफिसर से थोड़ी सी अच्छी अपने इंप्रेशन देना, तो अगर आपके पास अच्छा पीटीई रिजल्ट है 90% है, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे फील हुआ है कि लोगों को वीजे जल्दी मिल जाते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, उनको पॉइंट्स में भी हेल्प होती है, पॉइंट्स के अंदर भी पॉइंट्स में बहुत सारी हेल्प होती है।
ऐसा सर वो मैंने फीस के बारे में पूछा था, जैसे आपने बताया था कि इनिशियल फीस जो है $1310 है। एग्जाम की फीस $2300 है, एग्जाम की फीस 2300। वो सर उसके अलावा है असेसमेंट के जी जी, इसके अलावा जी ऑस्ट्रेलिया फीस लेने में सबसे आगे, आपसे फीस इतनी लेता है, अच्छा खासा फीस आपसे उठा लेता है, लेकिन आपको पैसे दे भी रहा है। देखिए ना, आपने आपने जो अभी मेरे से बातें सुनी है, $50,000 $1,00,000, ये पैसे कहाँ से, ये आप ही की जेब में जाएंगे ना जब आप यहाँ पे आ जाएंगे काम करने के लिए। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, अपने लिए अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, तो ये आप एक तरीके से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इतने पैसों की एग्जाम आपने पास कर लिया, ये कर लिया, वीजे की फीस दे दी, तो आपने $10,000 $15,000 खर्च कर लिए या उसके करीब करीब। तो वो पैसे तो आप अगले मेरे ख्याल से यहाँ आके 3 से 4 महीने में कमा लेते हैं। बहुत कमा लेते हैं, सही बात। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। सर ये पूछना था कि एक कोई लेडी बात कर रही थी, फीफा मैंने देखा जी, था। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि कौन सी स्टेट में ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा जॉब्स हैं? जैसे आपने कहा कि सिडनी में नहीं है, तो किस स्टेट में ज्यादा जॉब्स हैं? ओके, देखिए ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सारी जो स्टेट्स हैं अगर आप देखें, जिसमें सबसे बड़ी स्टेट जो है वो क्वींसलैंड की स्टेट है, जहाँ पे ओवैस भाई बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ की जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं इस वक्त। इसके बाद अगर आप देखें तो रीजनल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त धड़ाधड़ स्टेट डोमिनेशन दे रहा है फार्मासिस्टों को। उसके पीछे लॉजिक यही है कि उनके यहाँ जॉब्स बहुत है इस कम्युनिटी फार्मेसी की। हम कैप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस इस वक्त वहाँ पे जहाँ जॉब्स हैं इस वक्त। और फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया या रीजनल विक्टोरिया, यहाँ भी काफ़ी जॉब्स हैं। तो ये आपको और अगर आप मेरे उसमें ग्रुप में आ जाए तो वहाँ हम ये डिस्कशन बहुत दफ़ा कर रहे होते हैं, इवन कि मैं जॉब्स भी लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ, जॉब्स कहाँ पे हैं वो सब मैं बता रहा होता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस, मे बी ज्वाइन विद द ग्रुप, मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है उसके अंदर व्हाट्सएप का। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी बताइए जी। सर जब हम वहाँ पे एज इंटर्न फार्मासिस्ट काम करते हैं, तो एज इंटर्न हमें हॉस्पिटल में काम करना होता है या और रिटेल सर मैं कम्युनिटी फार्मेसी में, और पूछना इसके था। अलावा डेली जो है हमें कितने आवर्स हेलो के लिए काम करना होता है? सॉरी सर मैंने सॉरी, दो लोग एक साथ बात कर रहे थे, तो मैंने दोनों में से हिदायत साहब का क्वेश्चन सुना, मैं आंसर बाद में करूंगा। फीफा आप पूछिए, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप प्लीज बताइए। Yes, Afifa, you can ask the question you were saying. आपको मेरी आवाज आ रही है? Afifa Zulfikar, you were asking the second question. I'll wait for you. Then I'll jump on Mr. Hidayat answer. यस सर, आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कैप्स एग्जाम में हमें सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा? Okay. मतलब कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि हम प्रिपरेशन शुरू कर दें? That's very important question. आपने बहुत अच्छा किया, सवाल पूछ लिया। इसमें मल्टीपल चॉइस में आप कुछ नहीं छोड़ सकते, कोई इसमें आपको गुंजाइश नहीं है कि आप कोई अपने ऑप्शनल में छोड़ें। आपको जो टॉपिक्स हैं उनके रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको एवरीथिंग पढ़ना है उस पर, एवरीथिंग, एवरी कॉर्नर में जो भी टॉपिक्स है ना वो आपको सारे पढ़ने हैं। आपके पास चॉइस नहीं है कि आपने एक टॉपिक को छोड़ दिया और बाकी 10 टॉपिक्स कर लिए। लेट्स सपोज अगर 10 टॉपिक्स हैं, 10 में से एक को छोड़ दिया, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो अगर आपने फर्दर इसमें डीप डाइव करनी है तो यू नीड टू जॉइन अस, जैसे कि मैंने आपको बताया, देन वी कैन गाइड यू बेटर। अभी हम ब्रॉडर टर्म में बात कर रहे हैं, अगर आपको डिटेल चाहिए तो यू नीड टू जंप on our group and we can guide you more in depth. We can even give you the syllabus as well. Sure, thank you so much. Okay, thank you. मैं हिदायत साहब के पास जाता हूँ। उनका जो क्वेश्चन था, आपने जो सवाल किया था इंटर्नशिप की वेजेस के बारे में आपने सवाल किया था जी, इज इट राइट? सर मैंने ये पूछा था कि एज इंटर्न फार्मासिस्ट हम हॉस्पिटल में काम करेंगे या रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी में, और डेली जो है हमें कितने आवर्स तक काम करना होगा सर? I'll give you all the information. देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ना ये जॉब्स की, जो कि हमने जब शुरू में बात की थी कि फार्मेसी गिल्ड की प्रेसिडेंट आई थी वेबिनार में हाई कमीशन के साथ, तो वो सारी की सारी जॉब्स है ना, वो हॉस्पिटल की जॉब्स तो है ही नहीं, सही है। हम कम्युनिटी फार्मेसी की जॉब्स की बात कर रहे हैं। आपकी जो एक्सेप्टेंस है, ओवरसीज फार्मेसिस्ट की जो एक्सेप्टेंस है, वो कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं है। ठीक है सर। हॉस्पिटल फार्मेसी में आपकी इंटर्नशिप होना नामुमकिन के बराबर है, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी में एक्सेप्टेंस है और 38 आवर मिनिमम
आपको इजाज़त होती है एज ए फुल टाइम वर्कर काम करने की 38 आवर, 40 भी करते हैं, 46 भी करते हैं, लेकिन मिनिमम 38 आवर करते हैं लोग इंटर्न फार्मासिस्ट ठीक है, पर वीक। पर वीक। तो वो जो सही सही 50,000 जो मैंने आपको सैलरी बताई है, वो उसी बेस पे बनती है कि आपने फुल टाइम काम किया तो इतने पैसे आपके हैं, अगर ज्यादा काम किया ज्यादा पैसे आपके। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, प्लीज नाम बताइए। तहसीन हियर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तहसीन, ओके तहसीन जी बताइए जी। Sir, I have attended your last seminar as well, if you remember. Yes. I would like to pay thanks to you and Sarfraz, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे आज क्लियर हुई हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं पे कंफ्यूजन हुई है, तो उसके हिसाब से क्वेरी है मेरी। I would like to ask sir कि आपने एक वे बताया था कि we can go with the state that is उनकी जो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स वो ऑफर कर रहे होते हैं एज इन स्टेट, तो उसके लिए भी कोई स्पॉन्सरशिप बेसिकली वो ऑफर जो कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कैप्स के एग्जाम क्लियर होना उसका जरूरी है, राइट? लेकिन स्टेट नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं या स्टेट स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं आप? स्टेट स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। स्टेट स्कॉलरशिप से क्या मुराद है आपकी? नॉमिनेशन की बात कर रहे होंगे, स्टेट स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप, या एग्जैक्टली राइट। जी, स्टेट स्पॉन्सरशिप भी मैंने आपको बताया कि अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट वाला पाथवे लेते हैं, फिर तो एग्जाम क्लियर नहीं करना आपको स्किल असेसमेंट के लिए ना। अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट या रिटेल का रूट लेते हैं तो उसके लिए तो फिर कैप्स आ जाता है। तो अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन है या इंडस्ट्रियल है तो उसके लिए यू नो डोंट नीड टू गिव द एग्जाम, जस्ट द स्किल असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंस। So I would like to ask sir, I'm working as a medical services executive in GSK right now. So what pathway should I select to go there? डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेशन और जॉब ड्यूटीज आप क्या कर रहे हैं। So it's a sales department and it's lie under the sales department. ये प्रॉपर एक फार्मेसी का सेटअप है? नहीं सर, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अच्छा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी नहीं, इंडस्ट्रियल फार्मेसिस्ट की तो स्पेसिफिक ड्यूटीज होती हैं उसमें। अगर आप सेल्स या मार्केटिंग साइड में, तो वो इट विल नॉट फॉल इन एनी फार्मासिस्ट ऑक्यूपेशन एक्चुअली, क्योंकि वो तो सेल्स और मार्केटिंग की साइड होगी ना। जैसा फार्मेसी टेक्नीशियन की ड्यूटीज हैं, बेटिसन ने दी हुई हैं कि ये ड्यूटीज आप कर रहे हो इस टाइप की। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की अलग ड्यूटीज होती हैं। सेल्स और मार्केटिंग साइड में तो कैटेगरी फिर सेल्स मैनेजर वो आ जाती है, उसमें तो चांस बहुत कम है और टोटल डिफरेंट आ जाती है कैटेगरी। जी, तो इसी हवाले से मैं क्लैरिटी चाह रहा था कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसिस्ट ऐसे कौन सी डेजिग्नेशन है जो वो ऑफर करते हैं वहाँ पे, और किन डिपार्टमेंट्स में वो हमें इंटरवेट करने दे सकते हैं फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी को। इसका इरफान भाई बता सकते हैं कि वहाँ पे किस जगह सेट बैठ सकते हैं एज अ जॉब की बात करें। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, देखिए जो जॉब है ना, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी कुछ लोग हैं जो अपनी असेसमेंट करके वीज़ा करके ऑस्ट्रेलिया आ गए, ठीक है, और उनका प्रोसेस 6 महीने से 8 महीने में कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वो जब यहाँ आ गए तो उसके बाद उनको अभी 4 महीने हो गए एंड दे स्टिल होपिंग कि उनको जॉब मिल जाएगी यहाँ पे इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने जब वो मेरे से कांटेक्ट में आए थे, आते ही शायद सेकंड डे उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, देखें आपको पाथवे था ऑस्ट्रेलिया आने का, आप आ गए, लेकिन यहाँ एडलेड में या साउथ ऑस्ट्रेलिया में जॉब बिल्कुल नहीं है इंडस्ट्री के साइड पे। आप अगर अपनी चॉइस चेंज करें तो आप इधर कैप्स कर लें, या फार्मेसी में काम करने के लिए कुछ यहाँ पे थोड़ी सी कुछ कोर्सेज कर लें, कुछ मैंने उनको गाइडलाइन दी थी, तो वो अगर कर लें तो वो जॉब कर सकते हैं फार्मेसी में, कम्युनिटी फार्मेसी में। तो कम्युनिटी फार्मेसी इस वक्त इनटेक कर रही है बहुत सारे लोगों को। तो आई वुड एडवाइस कि इफ यू कम टू ऑस्ट्रेलिया, प्लान योर कैरियर इन कम्युनिटी फार्मेसी। Okay, sir. Okay, that literally clears many queries. This is very simple. This is very simple. ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग प्रोफेशन चेंज करते हैं, इट्स नथिंग न्यू कि आपको इंडस्ट्री में अगर आप आ गए तो इसका मतलब है कि आप इस इंडस्ट्री के लिए ही। I was myself electrical engineer. इमीग्रेशन कंसल्टेंट बन गया मैं। That's a motivational thing, sir. बिल्कुल, देखिए पैशन था इस चीज का, इस तरफ आ गया मैं। ये तो बड़ा कॉमन है ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशन चेंज करना, प्रोफेशन में चेंज करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। जी बता जी, क्वेश्चन है तो पूछिए रिजवाना प्लीज। थैंक यू। सर ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन वहाँ पे हैं तो उनको भी वही पे किया जाता है जो फार्मासिस्ट को किया जाता है,
नहीं, या अगर ऐसा उनको ऐसा होता तो रहेगा। फार्मासिस्ट सारे जो है ना वो घर चले जाते, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है काम करने की, क्योंकि फार्मेसी टेक्नीशियन के रेट डिफरेंट होते हैं, कम होते हैं, फार्मासिस्ट के ज्यादा होते हैं। सर ये फार्मेसी टेक्नीशियन हर फार्मेसी पे होता है, और दूसरी बात है कि इसकी वीजा रेशो क्या होगी जब बंदा अप्लाई करता है असेसमेंट के बाद एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के मुकाबले में? जो ऑस्ट्रेलिया में जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो बेसिकली फार्मासिस्ट को असिस्ट करता है इन लेबलिंग मेडिसिन, उनके मिक्सचर बनाना, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अंडर। ठीक है, तो जो भी फार्मेसी होगी पाकिस्तान में, इधर भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपको यही शौक करना होता है जॉब डिटेल्स में, यू आर अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट, आप सारा कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, वीजा रेशो देखें डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया में अच्छी है, क्वींसलैंड में इस वक्त अच्छी जा रही है, लेकिन इट चेंजेस, वी नेवर नो। रात को हम सोएं, सुबह वो कोटा चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, ये कोटा फिल हो जाए, तो ये रियल टाइम में देखना पड़ता है कि क्या सिचुएशन है। मशवरा यही होता है कि जल्दी से जल्दी असेसमेंट करा ली जाए अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं आप तो, ताकि आप क्यू में लग जाएं एटलीस्ट। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, रिजवाना के क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि वेजेस क्या होती हैं। तो फार्मेसी जी टेक्नीशियन की जो जी वेजेस सर। होती हैं वो तकरीबन इंटर्न फार्मासिस्ट की जो वेजेस मैंने बताई हैं आपको 4000 मंथ या 55,000 ईयर, ये होती हैं। और उनकी वेजेस तकरीबन यहीं पे स्टे करती हैं, 60,000 तक चली जाती हैं। वो फार्मासिस्ट के बराबर नहीं बन सकते, और स्टेटस वाइज वो फार्मासिस्ट को के लेवल पे नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन दैट्स व्हाई मेरी एक यूट्यूब पे एक वीडियो बड़ी अच्छी लोगों ने लाइक की थी, जब मैंने ये बात की थी कि आप इस कंट्री में जब आ रहे हैं, आ जाएं, जो भी पाथवे खुला हुआ है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बड़ी मेहनत की होगी जब आपको फार्मासिस्ट स्कूल में भेजा होगा 4-5 साल। तो फॉर सेक दैट यू जस्ट डू द कैप्स एंड बिकम द रजिस्टर फार्मासिस्ट। अच्छा, रजिस्टर फार्मासिस्ट की बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, वो भी मैं बताता चलूँ। वो ये कि रजिस्टर फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी में काम कर रहा होता है उसके बाद बड़ी अथॉरिटी होती है, बड़ी उसको रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन अटेस्ट करने की उनके पास अथॉरिटी होती है। जैसे कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जैसे 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है, वो स्टैम्प करके आपके डॉक्यूमेंट साइन करता है। इस तरह फार्मासिस्ट जो होता है ना, कम्युनिटी फार्मासिस्ट में, इसके बाद एपरा का फुल रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी के डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर सकें। तो उनके पास एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, ये पावर होती है उनके पास। दूसरी एक और चीज बड़ी जरूरी है जो बताना मुझे यहाँ पे, वो ये कि जब आपका एपरा का फुल रजिस्ट्रेशन आता है, जब आप फुल फ्लेज फार्मासिस्ट हो जाते हैं, मतलब कि आपने इंटर्नशिप खत्म कर ली और सारा वो पैनल वैनल के सामने जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो कर ली आपने, आप फुल रजिस्टर हो गए, एपरा के पास से आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म होकर फुल रजिस्ट्रेशन हो गए। ठीक है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो एक्सेप्टेंस होती है ऑस्ट्रेलिया में, ह्यूज है, ह्यूज। जब आप कहीं जा रहे हैं किसी शोरूम पे गाड़ी खरीदने के लिए, आप ये बताएंगे यार मैं आपरा का फुल रजिस्टर फार्मासिस्ट हूँ, वो आपसे ना सैलरी स्लिप मांगेगा ना कुछ मांगेगा, वो बोलेगा अच्छा भाई गाड़ी खरीद लो, तो मैं हम लोन वैसे ही अप्रूव कर देंगे। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, वो फार्मासिस्ट जो रजिस्टर फार्मासिस्ट है ना, उन्हीं के साथ होती हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन के साथ नहीं होती हैं, और ना ही इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के साथ होती हैं। तो दैट्स समथिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट to satisfy yourself, your need as well, and your professional needs, professional satisfaction as well. हेलो, तो सर जी जी सर मैंने ये पूछना था कि ये इंटर्नी फार्मासिस्ट की जो सैलरी आपने बताई कि पर मंथ तकरीबन 4,000 राउंड अबाउट इतनी होती है, तो इसमें सर इसकी जरा डिटेल बता दें कि इसमें जो है हम सेविंग कितना कर सकते हैं, यानी रिहाइश पे कितना खर्च आएगा या फूड एक्सपेंसेस वगैरह जो है, इसके अलावा हमें कितने सेविंग कितनी कर सकते हैं? देखिए, सेविंग का सवाल है ना, वो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो एक्सपेंसेस हैं वो आप ही को मीट करने हैं। ठीक है, घर तो आपका यहाँ है नहीं, घर आपने किराए पे लेना है। ठीक है, तो जो भी घर आप लेंगे वो 300-350 पर वीक के किराए पे मिलेगा आपको यहाँ पे। और घरों की जो मुश्किल हुई हुई है, क्योंकि बहुत इमिग्रेंट ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो घर ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा किराया भी देना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी रह गई लिविंग कॉस्ट, खाने पीने का खर्चा, वो तकरीबन आप उसका लगा लें $800 के करीब लगा लें, अगर आप बहुत मिनिमल एक्सपेंस पे काम रहते हैं। तो देखिए, सेविंग का जो सवाल है ना, वो बड़ा हार्ड है, until or unless your spouse or your wife is also working in some other job, तो उनकी जो अर्निंग है वो फिर इतनी हो सकती है कि आपके पास कुछ पैसे सेव हो जाएं, जो आप सेव करना शुरू करें, या आप एक लमसम हैंडसम अमाउंट पाकिस्तान भेज सकें। तो वो मैं आपको अभी से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के पीछे बहुत पड़ा रहता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ आपकी जो वाइफ काम करे, और तो उससे ना दूसरी अर्निंग की वजह से आपके घर में बहुत
बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है। अच्छा सर, ये बात आपने की तो इस वजह से पूछ रहा हूँ, फैमिली का साथ में ले जाना जरूरी कंपलसरी तो नहीं होता ना, बंदा अकेले भी जा सकता है अगर मैरिड हो कि नहीं? ये वो जा सकता है, गहरी बात है, वो तो जा सकता है, लेकिन वीजा लगने के बाद एक खास टाइम लिमिट होती है जिसमें एंट्री देनी होती है फैमिली को भी। मतलब एंट्री दे के बेशक वापस चले जाएं, लेकिन वो एंट्री देनी होती है। 1 साल का टाइम देते हैं, उससे पहले बेशक घंटे के लिए एंटर हो फैमिली या जैसे भी हो, वो आपको वापस जा सकते हैं, लेकिन एंट्री करके 1 साल के अंदर अंदर वो टाइम लिमिट देते हैं। सिर्फ एंट्री जरूरी, यानी जॉब वगैरह तो करना जरूरी नहीं होता ना? वो आपके लिए करना जरूरी होगा। 3 साल रीजनल में 491 वीजा ही मिलता है ज्यादातर, आपके वाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन आपके लिए जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। Thank you for Time Institute. I think all the coordinators यहाँ पे खदीजा हुसैन हमारे साथ हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। एंड और कोई Yes, sir, I am here with you. Thank you. That was really a very interactive session. Thank you very much for organizing this, and thank you for having us. Sir, thanks to Dr. Ahtsham as well, because he has suggested me to conduct this, and it went really very well. Even it was very informative for every one of us. Thank you. Thank you for, I think जो ने इसको सुना है वो अगर इसको लिख लें, नोट्स बना लें तो वो उनके लिए Definitely. जाएगा। और अगर किसी ने इसको फर्दर पुट अप करना है तो मैंने अपने शेयर किए में कांटेक्ट, आप आ जाएं हमारे पास, स्टूडेंट एवरीवन, और वैसे जो है उनका भी हम कांटेक्ट शेयर कर देंगे आपको, अगर आपके पास फर्दर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो most welcome. This is just a voluntary service we thought we can do for Pakistani students or Pakistani graduates. Sir, I would like to thank you again on the behalf of the administration of Times Institute Multan and on the behalf of HOD of Faculty of Pharmacy of Times Institute. Thank you. Thank you very much, and we will put this video of this what we have just done today on our YouTube channel, and anyone can watch it again if you want to watch it again. Yeah. Sure, sir. Okay. All right. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Allah hafiz. Thank you. Allah hafiz. Allah hafiz.